Okay, have you sit? So I am Priyanshu and we will be studying together philosophy. और भी लोग आने हैं भी या आ गए सभी? अच्छा, ऑलमोस्ट आ गए, ठीक है. So where do you have to study philosophy? Why you are studying philosophy for your state service exams? You have there in your syllabus? Have you been through the syllabus? Huh? Where it is? Where do you find philosophy? पेपर 6. अच्छा, वो पेपर और जो जीएस पेपर, तो जीएस पेपर 4 हो जाएगा और ओवरऑल पेपर अगर देखें तो 6 हो जाएगा, है ना. सो द फर्स्ट 2 पेपर दे आर द लैंग्वेज एंड द एसे, देन यू हैव द 5 जीएस पेपर्स. ओके, सो जीएस पेपर 4 एंड ओवरऑल पेपर 6 पार्ट 1. ओके, so is it important only for the main examination, the written part, or is it important for the prelims as well? Prelims as well. How many of you have attended the prelims exam this year? Please raise your hand. Oh, some 6, 7, 8. Fine. Okay. So did you find the questions related to philosophy? How many? 4, 5 questions were there. Some overlapping with history, some overlapping with current affairs as well. So what we are studying under philosophy, that is not only important for the main examination but the prelims as well. This year I observed some new trends which are emerging in the prelims examination. As you see that most of the time philosophy is considered to be mostly a static subject, static, not much changes. Means Plato said something 2500 years ago, so now not much change. But since this year, so in preliminary examination, questions which are related to current affairs but somehow also relate to the syllabus of philosophy are also appearing. For example, the UNESCO one, भगवद गीता और वो ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आपको पिछले साल रहा था, है ना. सो द यूनेस्कोज लिस्ट वाज देयर, उससे क्वेश्चन आए थे. सम बेसिक क्वेश्चंस वेयर देयर, फॉर एग्जांपल दी हेट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स, वो सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. आज के ही क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे. सो नाउ अप्रोच टू फिलॉसफी इन प्रीलिम्स और मेन एग्जामिनेशन शुड बी in accordance to the changing trends in the exam. So keep an eye on what is changing in the current affairs. Is something appearing with respect to the topics mentioned in the syllabus? Is something appearing in current affairs, newspapers, magazines? Okay, so keep a very keen eye. Even one question, 2 question, it matters a lot. Second thing is that now in this year's prelims you had questions of philosophy related to art and culture, history. उन्होंने आपको जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनके विषय में क्वेश्चंस पूछे थे, किस लैंग्वेज में है, कौन सा टेक्स्ट है ना. तो इस तरीके से थोड़ा इंटरलिंक करके अब प्रीलिम्स में भी आपको देखना है. मेंस का पैटर्न अभी अब देखिए वो किस प्रकार से क्वेश्चंस मेंस में पूछते हैं. सो टिल नाउ द सीजीपीएससी इट हैड अप्रोच ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस पेपर वाइज, नॉट इंटरकनेक्टिंग देम, बट सम टेंडेंसी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड सिंस दिस ईयर. सो प्लीज ऑल्सो ट्यून योर प्रिपरेशन इन अकॉर्डेंस टू द चेंजिंग ट्रेंड. इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा लिंक करके, हिस्ट्री है, जैसे आपने हिस्ट्री में कई चीजें पढ़ी होंगी एंशिएंट इंडिया में, फिलॉसफी में हम पढ़ेंगे तो उसको जोड़कर देखिए, है ना. सो कल्टिवेट दैट हैबिट. ओके, सो फिलॉसफी वी हैव इन द जीएस पेपर 4, ओवरऑल पेपर 6. फाइन. इन द मेन एग्जामिनेशन एंड इन प्रीलिम्स आल्सो यू हैव द टॉपिक इंडियन फिलॉसफी, कल्चर, हिस्ट्री. सो इन बोथ एग्जाम्स इट अपीयर्स. फाइन. सो वी विल discuss the subject first of all and then go in accordance to the topic that is mentioned in your syllabus. What is the first topic in your main syllabus? First topic of philosophy, what is it? Nature of philosophy. Nature of philosophy. उसके बाद फिर आपको relation of philosophy with religion and culture, then you have to study the differences between the Indian and the Western philosophy and so on. Okay, but before getting into the subject, let us understand what the subject is. What does it study? What does it aim to do? What is the objective? So what do you think of philosophy? When the term philosophy comes to your mind, what do you think of it? And everyone please focus on the discussion. Why? It is a very interesting subject if you follow it logically, if you are attentive in the class, and it becomes very abstract once you miss the train. Once you miss the train, it becomes very easy to reach from one place to another. If you get into the bus and once you miss it, it is very difficult. Then you will have to look for alternate arrangements. Okay, so it's better to get into the bus. So
What do you mean by philosophy? When the term comes to your mind, तो क्या बातें आपके दिमाग में आती हैं? What is philosophy? Have any of you studied it as an academic subject earlier? Anyone? Okay. So what sense do you get of philosophy? क्या है ये subject? Anything? Have you come across the term philosophy? How? Love of wisdom. Okay, so that is the meaning of the term philosophy. पर आता क्या है हमारे दिमाग में जब हम philosophy की बात करते हैं तो? What comes to our mind? अच्छा, something means mentality about something, attitude towards something. You said something deeper, some deeper quest, some very insightful thinking upon, introspection upon the very fundamental questions of life, है ना? तो जब हम philosophy की बात करते हैं, so what comes to our mind is that there is something which is very insightful, introspective, reflective, you know, and which is at the same time which involves depth of human query as well. ठीक है, ये एक aspect है उसका. Do all of us engage in such kind of activities in our life? Do all of us think about such kind of quests of life, the questions of life? What sort of questions come in our mind? When you think of philosophical questions, so means let's say what I would have as lunch. So is this a philosophical question? एक पेटू आदमी के लिए हो सकता है, मेरे लिए हो सकता है, but it is not, you know, a philosophical question in the academic sense. Okay? Then why do you say it is not such a larger question? Means एक टाइम की बात है, सिर्फ खाने की ही तो बात है, एक लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी की बात है, एक बार की बात है, तो उतना फंडामेंटल नहीं है. इट इज नॉट सो वाइड अ क्वेश्चन. ओके, देन what are those questions which philosophy deals with? What are those questions? Which kind of queries or questions which come to your mind would you say it is a philosophical question? किसको कहते हैं हम? किसको कहते हैं? What kind of ideas or thoughts come to your mind, questions come to your mind? God? What is God? The supreme being or the ultimate reality, okay? The supreme being or the ultimate reality. So the questions which are the most complex, is there an easy answer to this question? What is God? Who am I? What is good? What is bad? क्या ये सभी इतने आसान प्रश्न हैं? So these are the most complex questions of life. You can have a very easy answer of what are the components of an atom. Though we took centuries to answer that, but still means in a span of centuries we got the answer. But since millenniums we have been confronted with these questions and still we are struggling with those ideas. Is there any clear-cut answer of these questions? What is life? If I ask anybody what is life, tell me. We all are living beings. What is life? Can we have a single statement? No. Can we have a single answer? No. Is the question profound? Is the question profound? Yes. Profound means deep. Is the question which requires much investigation, much thinking, much reflection. So it is a deep question which involves reflection, introspection. है ना? Likewise, who am I? These questions emerge in our mind or not? क्या हम में से किसी के दिमाग में ऐसा है कि ऐसे प्रश्न नहीं उठते कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, जीवन है ही क्या, why this life after all, what after death, from where do we come, who has created us, who has created this entire world, what is matter made of, who is the ultimate creator of matter or immaterial things, who is the creator of physical things, who is the creator of psychical things, what is the origin of physical and psychical things, is there anything other than physical and psychical? क्या ऐसे विचार हमारे दिमाग में उठते हैं कि नहीं उठते? What is good, what is bad, what shall I do, what I shall not do? ये प्रश्न दिन भर हमारे दिमाग में उठते रहते हैं. Though we may not be aware or conscious of such questions arising, but our every decision making, it involves these very basic questions. Are these the most fundamental questions of our human life? Are these the most fundamental questions of our human life? Or is there something which is more fundamental rather than the idea of a supreme being, the ultimate reality? क्या उसके बाद भी कोई question है? We have questions related to reality, right? What is this, what is that, what is living being, what is change, what is permanence, who am I? So these questions, these are related to existence and reality, universe. What are celestial beings? What is sun, what is moon? So these are temporal questions, celestial questions, questions which are related to this world, this reality. What is the ultimate question? What is the ultimate reality?
which is the source of all these things, which is the creator. Is there a creator at all? What is the nature of that creator, characteristic of that creator? How shall we live? What is good, what is bad, what is ethical, what is unethical? So these are the most fundamental questions of life. बात आ रही है समझ में? And the subject we are studying, that is very much part of our daily life. Don't take it as something very abstract and you are going to read something, you know, very means heavy and very difficult. The point is, it is a very easy subject if you approach it in a logical manner, as the character of the subject is. The entire character of the subject is purely logical. There is no space for illogical thinking in philosophy. Purely conceptual, based upon reasoning. If you follow the reasoning, the subject becomes very easy. If you don't follow it, it will be very traumatic. I'll say, once you get into Kant, once you get into Bradley, so it will traumatize you. Hegel, traumatize you. Many people, after doing PG and PhD, they are not able to properly understand Kant, Hegel. Why? The logic is missed somewhere. So follow the logic, you know. So be very attentive in the class, be interactive, as the questions are not anything which are not in your mind. So all of us, we deal with those questions, you know. So don't be a passive listener, be completely attentive to the class and respond to the answers or raise questions which come to your mind while our discussion. Raise questions. You can interrupt the class at any point of time, raise any kind of doubt which emerges in response to what I am discussing. Okay, that's how we learn philosophy. It's not like any other subject. If your doubts are not cleared, if you are not convinced with a particular logic, my logic or the thinker's logic, so please intervene and raise question. Okay, so the mode of discussion will be interactive, and feel free to interrupt the class at any point of time, only with valid questions which are relevant to the discussion. Is it clear? ओके तो एकदम इतनी शांति नहीं चाहिए मुझे, यू नो, इतनी शांति नहीं चाहिए मुझे. बहुत ज़्यादा जो शांति है वो भी परेशानी का कारण बनती है. तो थोड़ा सा आपके साइड से रिस्पॉन्स आना चाहिए. और बहुत आसान सी बातें हैं, सरल सी बातें हैं. सो व्हाट इज देन दिस सब्जेक्ट इज? So we try to understand that it deals with some fundamental questions of life. Physics deal with motion and rest. फिजिक्स में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं? मोशन, रेस्ट, मूवमेंट, फोर्स. क्या ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हमारी इंक्वायरी के, क्यूरियोसिटी के? नहीं. इससे फंडामेंटल क्या है? अगर हम मोशन की ही बात करें, लेट्स टॉक अबाउट मूवमेंट. सो फिजिक्स विल डील विथ द स्पीड, द वेलोसिटी, द डायरेक्शन, यू नो, द एक्सेलरेशन. All these physical parameters, are these the final questions, ultimate questions? So what could be ultimate question in this regard if you talk about movement and motion? What could be the final ultimate question with respect to movement? What is causing? Which is the prime mover? If there is movement, if fan, so the fan is moving due to motor, motor is moving due to electricity, electricity produce turbine, टर्बाइन में मूवमेंट, वाटर के फ्लो से, इफ इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में फ्लो, वेदर, क्लाइमेट. हु इज मूविंग ऑल दीज थिंग्स? हु इज द प्राइम मूवर? दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन. इज इट क्लियर? Aristotle dealt with the question of prime mover. So philosophers, they deal with the ultimate question, the final question, which is the widest possible question in any field. That's why in any subject, when you get an advanced level of education, you are awarded with the PhD, the doctorate in philosophy. What has biology do to philosophy? What has art subject do to philosophy? What has mathematics do to philosophy? But still the advanced level of education, you are awarded the degree of doctorate of philosophy. Why? As you are dealing with larger questions which are related to that subject. ऐसा थोड़ी कि मैथ में PhD कर लिया तो वो सोक्रेटिस को पढ़ा होगा, उसने कांट को पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है. तो क्यों उसको PhD की डिग्री दी जाती है? एज द पर्सन इज डीलिंग विद द लार्जर क्वेश्चंस ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, एनी सब्जेक्ट इट मे बी. So the characteristic of philosophy is that it deals with the most fundamental questions of our inquiry. Most fundamental questions. Who am I? What can be more fundamental than my existence? If I think what shall I eat, that is not fundamental. More fundamental is who am I? From where did I come? From where I will go after my life? This is the most fundamental question. Still more fundamental is what is life at all? What is beyond life? That is a more fundamental question. What is beyond life? Is there anything which is
बियॉन्ड लाइफ एज वेल एज बियॉन्ड लाइफ? इज देयर समथिंग? दो आपको रियल्म्स होते हैं, टेम्पोरल रियल्म और जो ट्रांसीडेंटल है, लौकिक पारालौकिक. इज देयर समथिंग विच ट्रांसेंड्स बोथ ऑफ दीज? सो दीज क्वेश्चंस, they are the final fundamental questions. So philosophy, what is the nature of the subject? This subject deals with the widest possible, fundamental, most essential questions of human life and existence. Is it clear? किस तरीके के क्वेश्चंस रेज करता है? मोस्ट फंडामेंटल, वाइडेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट एसेंशियल क्वेश्चन. कैन अ पर्सन लिव विदाउट हैविंग an answer about who am I or who has made everything? क्या कोई व्यक्ति इन प्रश्नों से अछूता रह सकता है? नहीं रह सकता. For time being we may not have the solution of these type of questions, but we still throughout our life these questions they keep us haunting us. क्या है ये, मैं कौन हूं, और उसका समाधान ढूंढना चाहता है. तो क्या हर व्यक्ति एक फिलोसफर है? Is every individual a philosopher? If all of us we confront these kind of questions, the fundamental questions, the insightful questions, the most critical questions of our existence and universe, so can we say that all of us are philosophers in that sense? To a certain extent, yes. Okay, then what is the difference between me and Plato? What is the difference between you and Shankaracharya? What is the difference between you and Madhvacharya, Vallabhacharya? Why those fellows they are called to be philosophers and not us? If all of us are confronted by the same set of questions, then why they are philosophers, not any ordinary individual? Okay, so they came to a conclusion. So they were dedicated and committed towards finding the solution of those fundamental set of questions. Okay, very good. So you pointed out that the subject of philosophy, it is driven by the sense of commitment. It is a committed pursuit. An ordinary person can have a simple pursuit. अभी दिमाग में विषय उठा, मैं कौन हूं, फिर कोई दोस्त मिल गया, बात खत्म, फिर अपने काम में लग गए, जॉब में लग गए. ओके, बट अ फिलोसोफर इज अ पर्सन हु इज डेडिकेटेड टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी. committed, lifelong commitment is there. What else? What differentiates between an ordinary person and a philosopher? Only commitment, only dedication, or something else? अच्छा, ऑर्डिनरी पर्सन इग्नोरेंस में ज्यादा रहता है, ठीक है, और फिलोसोफर सीकर ऑफ ट्रूथ. हाँ बोलिए. यस प्लीज टेल. The approach matters, then what is the approach of a philosopher? Most of us confront these type of questions. What is our approach? What is our approach? Is it always logical? Is it always critical? Is it always rational? Do we always have a rational approach towards the problem of God, towards the problem of soul, towards answering the questions of reality or universe? Do we always adopt a logical approach, or at times we become irrational also? We take the help of faith also, So ordinary person, so he or she may take the help of things other than logic and rationality, but a philosopher, he or she is always committed to logical reasoning, rationality. There is no space for irrationality in philosophy. Most of the time we think that philosophy is a subject which may deal with abstract ideas. Yes, it deals with abstract ideas, but it is completely logical in nature. There is no space for things other than logical reasoning in philosophy. Be very clear about this. ठीक है? So it is a pursuit of logical reasoning. What differentiates between an ordinary person and a philosopher? That the person is dedicated to find the ultimate problems of life, ultimate questions of reality and existence. How? Through logical reasoning, critical inquiry, investigation, not faith. मान लीजिए मेरे दिमाग में विषय उठा, दुनिया किसने बनाई. अब कोई धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो कहेगा ईश्वर ने बनाई, है ना, तो बात खत्म. सॉल्यूशन तो उसको भी मिल गया, पर क्या वो लॉजिकल है, क्या वो रैशनल है? वो फेथ बेस्ड है. फेथ ठीक है कि रीजनिंग ठीक है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट. ओके, पर वो फेथ बेस्ड है. फिलॉसफी का अप्रोच क्या है? इट इज लॉजिकल, इट इज इन्वेस्टिगेटिव, इट इज क्रिटिकल अप्रोच टू द मोस्ट फंडामेंटल अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ. व्हाट एल्स? बस इतना ही? क्या किसी व्यक्ति में चलिए एक डेडिकेटेड परस्यूट भी है, वो लॉजिकल भी है, उसने कुछ सॉल्यूशंस भी दे दिए, तो क्या हम उसे फिलोसोफर कहेंगे? Can we say that person a philosopher if a person has provided solutions for those kind of problems, set of ideas,
using the logical approach. Can we say that person finally as a philosopher? What else? What still is lacking? More things. Acceptance is not required, you know, validation is not required. The philosopher is least concerned about validation and acceptance. The differentiator, yes. Okay, so finding the solution, fine. So that can be in the case of an ordinary person as well. The differentiator is that the philosopher, he or she has a system of ideas, systematic approach to questions. And a lay person or an ordinary person can still have a logical approach but lack the systematic character of investigation. So a philosopher's investigation or questioning that brings out a systematic set of solutions and ideas. If you see in Plato, if you see in Aristotle, if you see in Gautam Buddha, Shankaracharya, anyone, Gandhi, Ambedkar, the modern thinkers, so you will find that if they have inquired upon something good or bad, you know, and philosophy can be in multiple areas, social philosophy, political philosophy, multiple areas. So if the philosopher is trying to find out the solutions of ultimate questions of life, so he or she approaches in a systematic manner, steps from one logical principle to another logical principle, followed up by the third principle, which are logically connected. So there is a connection of logic when it comes to ideas of a person who do you call as a philosopher. In an ordinary person, that coherence of idea, that connection of idea, that connectivity between the idea will be lacking. अब कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता है, मान लीजिए उसने भी जीवन भर सत्य की खोज की, ईश्वर क्या आत्मा क्या, उसके अलग अलग विचार हो सकता है कि उसके ईश्वर को लेकर विचार अलग हो, आत्मा को, सोल को लेकर उसके विचार कहीं और से ड्रिवन हो, है ना. बट अ फिलोसफर, ही और सी हैज अ सेंट्रल आइडिया and from that flows his or her multiple solutions of ultimate questions of life. For example, if you take Plato, so the Plato's central theory was the theory of ideas. Theory of ideas, हिंदी में प्रत्यय सिद्धांत बोलते हैं. वो आइडियाज अलग हैं जो आप समझते हैं, वो आइडियाज अलग थे. सो थियरी ऑफ आइडियाज, और उन्हीं से उनकी फिलॉसफी के जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं वो ड्राइव होते हैं, चाहे वो इमॉर्टैलिटी की बात हो, सोल की बात हो, एथिक्स की बात हो, किसी भी चीज की बात हो. Likewise, if you see Immanuel Kant की थियरी का सेंट्रल प्रिंसिपल है. गौतम बुद्ध सेंट्रल प्रिंसिपल, थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत समुत्पाद, आपके सिलेबस में पढ़ना भी है. थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, तो वो एक सेंट्रल थियरी है उनकी, उससे उनका सारा अनात्मवाद, निरात्मवाद, क्षणिकवाद सब उसी से इमर्ज होता है. सो देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन इन द आइडियाज ऑफ अ फिलोसोफर, फिलोसॉफिकल थिंकर, वेयर देयर इज अ कनेक्टिविटी in various solutions. Is it clear? So whom we will call a philosopher, or what is philosophy? Then philosophy in that way, it is a subject which is a critical inquiry. It is a critical inquiry. Critical मतलब केवल आलोचना नकारात्मक रूप से करना नहीं, critical मतलब किसी के सही किसी के गलत दोनों पक्ष को देखना critical approach कहा जाता है. Having a view of both the pros and cons, good and bad, advantage, disadvantage of anything, that is called a critical approach. So what is philosophy then? Philosophy is the subject, philosophy is the critical investigation or inquiry of the most, किस तरीके के questions, किस तरीके के, most fundamental questions, most essential questions. So philosophy is a subject which deals with the most fundamental and ultimate questions of life and existence. Most fundamental and ultimate questions of life and existence. What is the approach? Adopting a logical and a rational approach. Approach क्या है? Logical है और rational है. किस तरीके का approach है? क्या one time है या dedicated, persistent है? Persistent approach. A persistent approach. A persistent approach to find the solution for the ultimate questions of life. That is philosophy. What is it? It is a rational approach. It is a critical approach to find the solutions of the fundamental ultimate questions of life in a dedicated and persistent manner. This is philosophy. क्या इसको रटने की जरूरत है? फिलॉसफी को अगर आपने रटा तो आपके ऊपर नया कानून में सजेस्ट करूंगा सरकार को, सबके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए. फिलॉसफी जो है वो रटने की सब्जेक्ट नहीं. अगर आपने फिलॉसफी को रटा, इससे बड़ा इनजस्टिस इस सब्जेक्ट के साथ हो ही नहीं सकता. कोई भी सब्जेक्ट रटना नहीं चाहिए, पर फिलॉसफी तो खैर आप सोच भी नहीं सकते रटने का, और आप रट भी नहीं पाएंगे.
जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो टर्म ही इतने खतरनाक हैं कि अगर आपने उनको रटने का प्रयास किया तो वो आपको बुरे सपने आएंगे रात में. इट विल ट्रॉमेटाइज यू, यू नो, it will traumatize you when you come to Hegel, when you come to Bradley, so it will start traumatizing you, but it becomes very easy when you understand it. कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं पूरी गारंटी के साथ. अगर आपने क्लास को खूब ध्यान से सुना, कंटिन्यूटी रखी, डेली अटेंड किया क्लास को, इस विषय में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको परेशान करने की क्षमता हो. So this is so easy a subject. Why? It is completely logical. Whatever we will discuss, it will be based upon some logic. You might agree with that logic, you might disagree with that logic. Finally, you will have some conclusion or opinion about that thinker, that philosopher, that idea. कि हाँ भाई यहाँ तक ठीक है, इसके बाद ठीक नहीं है. बात आ रही है समझ में? So that is completely logical. So try to understand the subject rather than mugging it up. Okay? So we had a sense of the subject. What is subject? Dealing with the ultimate questions of life. It does not deal with the trivial questions of life. Trivial questions, superficial questions से deal नहीं करता, ultimate questions से deal करता है. ठीक है, किस तरीके से? persistent manner में लगा हुआ है आदमी. सिद्धार्थ गौतम ने क्या कहा? when he was, you know, on the last day when he was to get enlightened, so he sat with the commitment that even if my life is lost, I will not stand up from my tapasya till I get the solution of freedom from this जन्म मरण चक्र. जब तक मैं इस जन्म मरण चक्र के हल को नहीं पा जाता, समाधान को नहीं, सॉल्यूशन को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मैं उठूंगा नहीं अपनी जगह से, चाहे मेरा प्राण क्यों ना चला जाए, मेरा जीवन क्यों ना चला जाए. सो विथ दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट अ फिलोसफर हैज दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट. इधर ध्यान दीजिए. नाउ सॉक्रेटिस, यू नो, हैव यू हर्ड ऑफ सॉक्रेटिस? हैव यू हर्ड ऑफ सॉक्रेटिस? सुकरात नाम सुना है? The ancient Greek philosopher, the greatest philosopher of all time, the first martyr of philosophy. फिलोसफी का पहला शहीद कहा जाता है सुकरात को. जहर पी लिया था सुकरात ने, है ना, पर अपने विचारों से समझौता नहीं किया. सोक्रेटिस हैड द चॉइस. उनके जो शिष्य थे सब एक से एक, प्लेटो जैसे शिष्य, डायोजनीस जैसे शिष्य. प्लेटो को वेस्टर्न फिलोसफी का एक तरीके से फाउंडेशन कहा जाता है, प्लेटो को. तो उनके शिष्यों ने तो भागने की भी व्यवस्था कर ली. बोला गुरुजी बस इशारा करो, सारी व्यवस्था है, हम निकाल भी लेंगे. और सोक्रेटिस के ऊपर एलिगेशंस क्या लगे कि सोक्रेटिस ही वाज मिसगाइडिंग द यूथ ऑफ एथेंस. कहा कि एथेंस के युवाओं को ये आदमी भड़का रहा है, नए नए जो है इनको वैल्यूज दे रहा है, नए नए देवी देवता इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको, सोशल ऑर्डर है, अथॉरिटी है, उसको चैलेंज कर रहा है, इसीलिए इसको मृत्यु दंड की सजा दी जाए. बट सोक्रेटिस अ पर्सन हु लिव्ड हिज लाइफ विद सच, यू नो, हाई इंटेलेक्ट, हाई मोरल, हु कुड क्वेश्चन हिम. सो द अथॉरिटीज टोल्ड हिम कि अगर आप क्षमा मांग ले तो हम आपको माफ कर देंगे. सोक्रेटिस ने कहा नेवर. इफ आई डोंट स्टैंड बाय माय वर्ड्स, हु विल स्टैंड बाय देम? सो ही चोज टू बी poisoned rather than fleeing or apologizing for what his ideas are. So such kind of commitment a philosopher has. Can an ordinary person, everyone has such kind of commitment? No. So commitment for truth, commitment for knowledge, from where you can relate the literal meaning of this the term philosophy. So it is comprised of two terms, Greek terms, that is philos and sophia. Philos and sophia. So what is the meaning of philos? What is the meaning of sophia? Philos का मतलब love, attraction, attachment. Okay, philos. Philo and phobic आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोफोबिक है ना. तो फिलोफोबिक दोनों एंटोनिम है. फिलो का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, है ना. लव, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, अटैचमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफिया? नॉलेज और विजडम. एंड सोफिया ऑल्सो द ग्रीक गॉडेस ऑफ लर्निंग, नॉलेज, है ना. अब जैसे भारत में अगर आप देखें तो हिंदू धर्म में ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? सरस्वती को. सो वी नो दैट लाइकवाइज हेनोथिस्टिक द ग्रीक्स वेयर, सो दे हैड मल्टीपल गॉड्स. सो सोफिया द गॉडेस ऑफ नॉलेज, है ना. एंड सोफिया लिटरली इट मीन्स नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज और विजडम. ज्ञान भी कहते हैं, प्रज्ञा भी कहते हैं, है ना, नॉलेज और विजडम. Now as we try to understand the nature of the subject, so now you can relate with the literal meaning of the term philosophy. Then if philos is love, attachment, and sophia is knowledge or wisdom, then what is the meaning of philosophy? Love for wisdom, love for knowledge, love for wisdom. ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही philosophy है, दर्शन है. ठीक है, बोलिए.
सोशियोलॉजी और फिलोसफी का डिफरेंस क्या है? सी सोशियोलॉजी इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी डील्स विद सोशल पैटर्न्स, सोशल फिनोमेना, सोशल रिलेशन, एंड फिलोसफी इट डील्स विद द इंटायर एग्जिस्टेंस, है ना। जैसे सोशियोलॉजी में आप ये मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के विषय में पढ़ते हैं, है ना, और सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि भाई जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके अपने अपने क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, सोशल ग्रुप्स एमर्ज कैसे हुए। लेकिन फिलॉसफी में ये पढ़ा जाएगा, अब जैसे कि मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, अ रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ओके। अब फिलॉसफी उसमें ये देखेगा कि रिलेशन क्या होता है। व्हाट क्वेश्चन फिलॉसफी विल रेज? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स? लीव असाइड मैरिज, why there is the need of a relation, what is the basis of relation, from where relation comes. So philosophy it always has a wider import, it has always wider subject matter of study, and these subjects in humanities or science they have a narrow area of human inquiry. For example, sociology deals with social issues, political science the political relation between the state and the citizen and among citizens, or between the citizen and the state. That is the import of, or that is the area of inquiry in political science. Economics अर्थशास्त्र, economics का subject of inquiry क्या है? So what is the subject matter of inquiry or study in economics? The economic transaction happening between the market forces. मार्केट में जो भी फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एक्सचेंजेज हो रही हैं आपको इनपुट की आउटपुट की, वही इकोनॉमी में स्टडी होती है. सो दीज आर नैरो फील्ड ऑफ स्टडी, these are narrow field of study. But philosophy it involves everything, it is all pervasive. It will ask which kind of transactions are good or bad, what is transaction itself, what is the meaning of transaction, how is transaction possible, who leads transactions, what will be a good transaction, bad transaction. So philosophy it covers everything. That is why at times it is called the mother of all subjects. फिलॉसफी को क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों की जननी कहते हैं. क्यों कहते हैं? एज इट डील्स विथ क्वेश्चंस व्हिच कैन हैव रिलेशन विथ वेरियस अदर सब्जेक्ट्स व्हिच हैव नैरोअर स्कोप. नैरोअर स्कोप, बात आ रही है समझ में? अब जैसे केमिस्ट्री है तो वो आपको सब्सटेंस के जो केमिकल नेचर हैं उसकी प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करता है ना. लेकिन यदि हम फिलॉसफी में आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं इसका ये कैरेक्टर कहां से आया, और कैरेक्टर ही कहां से आया, फ्रॉम वेयर इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस एमर्जेज. कलर फॉर एग्जांपल लेट्स से इन केमिस्ट्री यू कैन हैव कलर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, सो इट विल आस्क द क्वेश्चन कि रंग ही कहां से आते हैं. नाउ इज दैट अ क्वेश्चन व्हिच विल बी डील्ड अंडर केमिस्ट्री? क्या हम केमिस्ट्री लैब में ये पढ़ते हैं कि रंग ही कहां से आ रहा है, रंग का आइडिया कहां से आया होगा? नहीं. ओके फाइन. सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी इज मच वाइडर. दीज particular fields of interest or inquiry they have a narrow scope. Is it clear? सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा. So the term means that it is love or attachment or attraction for knowledge or wisdom. ज्ञान के प्रति अनुराग, प्रेम, उसी को हम philosophy कहते हैं. So is knowledge and wisdom the same thing? Is knowledge and wisdom the same thing? Is a knowledgeable person and a wise person the same? Is a person who has knowledge can be said to be a wise person? No. Then what differentiates them? What is knowledge? What is wisdom? Knowledge is acquired. Knowledge is acquired. Fine. Wisdom can't be acquired. Both can be acquired. Wisdom can also be acquired. Knowledge most of the time is gained by external sources. Wisdom is internally gained, and it is gained by your own insight. It is not, and it cannot be transformed from one to another. Never. It has always to be earned and gained by your own experience. Own experience. ठीक है. और क्या है बताइए? Knowledge based on moral values. Knowledge, wisdom can be driven by knowledge, values, moral values. Fine. What is wisdom is always positive. Fine. And knowledge can be, नॉलेज इज ऑल्सो वैल्यू न्यूट्रल. यू नो नॉलेज इज ऑल्सो वैल्यू न्यूट्रल. मान लीजिए किसी को पता है कि ये मेटल की बनी हुई चीज है ना, तो ये नॉलेज है. अब कोई इससे किसी को मार दे फेंक के तो वो निगेटिव हो जाएगा, है ना. सो नॉलेज इज ऑल्सो वैल्यू न्यूट्रल. विजडम, बट विजडम हैज अ पॉजिटिव वैल्यू एज यू सेड. दैट इज अ गुड आइडिया. ठीक है. इस तरीके से मुझे सोच के बताइए खुद से ही. कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हम बहुत अलग बात कर रहे हैं. नॉलेज इट इज वैल्यू न्यूट्रल.
उसका अच्छे बुरे से मतलब नहीं होता, दो जोड़ दो चार होता है, बात खत्म, अच्छा बुरा इसमें क्या है ना. विजडम, बट विजडम इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, विजडम इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, उसका हमेशा अप्रोच जो है बेटरमेंट, रिफाइनमेंट, गुडनेस है ना, पीस, प्रोग्रेस वो होता है. नॉलेज और विजडम के बीच में स्टिल जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो मुझे बताइए. व्हाट इज स्टिल द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन नॉलेज? हाँ हाँ, नॉलेज इज इंफॉर्मेशन एंड विजडम इज, व्हाट इज विजडम इफ नॉलेज इज फैक्ट? नॉलेज एक टूल है और उस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है वो हमको विजडम से आता है. अच्छा, then you said that knowledge is a tool, somebody said that knowledge is information, knowledge is fact, and as you said that knowledge is just a tool, wisdom it tells us how to use that knowledge. Okay, that is a good understanding. Knowledge क्या है? Knowledge is information about something, you know. This is a clean place, you know, this is a clean place, a person might be knowing that, and not to make it unclean, not to throw dust here, not to throw garbage here, that is wisdom. बात आ रही है समझ में? So wisdom is practice, it is value based. Knowledge, it is information, it is fact, it can be derived from anyone, from anything, it can be derived from anyone. But wisdom, it is only gained through experiences of life, it is only gained through your own experiences, your own struggles, that is wisdom. Okay, ये अंतर समझ पा रहे हैं आप सभी नॉलेज और विजडम के बीच में? विजडम इज नॉट मियर इंफॉर्मेशन और फैक्ट, यू नो, एज आई सेड कि ये जगह साफ है, ये किसी को भी जानकारी हो सकती है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है वो किसी को भी जानकारी हो सकती है कि द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज दिस एंड दिस ईयर, बट दिस चाइल्ड शुड नॉट बी पुट इनटू चाइल्ड लेबर, दिस इज विजडम. बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये विजडम है. बच्चों से काम नहीं करवाते, ये विजडम है. इस बच्चे की आयु 10 साल है, ये उसके विषय में फैक्चुअल नॉलेज हो सकता है. इज इट क्लियर? ओके, फाइन. सो फिलॉसफी, it is love for knowledge and wisdom. ठीक है. Now we understood that what is the nature of this subject. Can you tell me what are the nature and characteristic of philosophy in that case? What is the nature of philosophy? Is it faith based or inquiry and logical reasoning based? So it is a reasoning based pursuit. Okay, so what is the nature of philosophy? It is a reasoning based pursuit of knowledge, reasoning based or logic based pursuit of knowledge. What else? Tell me, just we discussed, you know, the nature of philosophy as a subject. What is the nature? It is critical in nature. Very good. So it is based upon reasoning and logic. Its another characteristic is it is critical in nature. Okay, what else? Debates and discussion based. It is argumentative in character. When you will find out, try to find out, you know, the loopholes in any argument, so you will produce counter argument. So philosophy, it is a subject which is argumentative in nature. Okay, so it can be one of the nature, it is argumentative. और क्या है? Tell me. Argument, it is persistent, it is a persistent effort, dedicated, it is dedicated in finding the solutions of the most fundamental or the ultimate questions of life. And it is so important that the British philosopher Aldous Huxley, so he remarked that there is no choice for a person between metaphysics and non-metaphysics. Metaphysics philosophy का एक branch होता है. So here you can consider philosophy. So Aldous Huxley, he was a British philosopher. He said that a person does not have the choice of metaphysics or non-metaphysics. मतलब philosophy के होने या ना होने के बीच का विकल्प नहीं है. हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है. क्या आप ये बात मानते हैं कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, चाहे वो पूरी ना हो, अधूरी ही हो, होती है ना? बिना फिलॉसफी के जी पाना संभव है? जब आपका अपने बारे में नोशन ना हो कि मैं कौन हूं, आधा अधूरा ही होगा. चलो मैं किसी का बच्चा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट आइडेंटिटी से आता हूं, इनकम्प्लीट आइडिया है. स्टिल I belong to a particular nation, so some sense of self identity. Okay, what is God? Can a person be there who has no opinion with respect to God? कुछ तो बोलेगा, है नहीं है, बेकार की बात है, कुछ तो कहेगा ना आदमी. So there is no choice for a person to not engage with philosophy. व्यक्ति के पास वो चॉइस ही नहीं. क्या हम सब ऐसे प्रश्नों से डील नहीं करते
From where did I come? Who created me? Why is this life? What is the purpose of this life? What is the purpose of my life? What is the purpose of my studies, my job? Do we deal with these questions or not? What will happen after my death? So all these things, a person has some sort of ideas. It may be some vague answers, some ambiguous answers, incomplete answers, some illogical answers as well at times. But can the person be without answers? क्या उसके नहीं तो वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस के स्टेट में व्यक्ति चला जाएगा अगर उसके पास आंसर नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आंसर्स आर सप्लाइड बाय रिलीजन, रेडीमेड आंसर्स. हु क्रिएटेड द वर्ल्ड? गॉड. Bible says that the God created the world. In Hindu philosophy, in particularly, the Brahminical or the Vedic system, the creator is called the Brahma. किसको कहते हैं रचयिता पूरी सृष्टि का? ब्रह्मा. काम खत्म, आंसर मिल गया आपको, रेडीमेड आंसर से. पर एक फिलोसफर इससे संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगेगा भाई कैसे, फिर वो पूछेगा या पूछेगी कि ब्रह्मा को किसने बनाया. तो हु इज द क्रिएटर्स क्रिएटर? So such kind of logical possibilities are there. So the point is that in philosophy, when we deal with philosophy, we raise these kind of questions. Okay, is it clear? What is the character of the subject? Okay. Now, the next thing, that what are the branches of philosophy? What are various branches of philosophy? What we actually study under it? What are the, यहाँ तक समझ में आया सभी को कि philosophy क्या है, कैसा subject है ना? तो इसमें आपको कोहेरेंट सिस्टमैटिक आंसर्स लाइफ के जो एसेंशियल क्वेश्चंस हैं उसको लेकर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी. हाउ मेनी ब्रांचेज फिलॉसफी हैज? कैन यू टेल मी? एनी आइडिया? 5 branches. Okay. Can you name them? Can you name them? The various metaphysics, very good. Epistemology, ethics, और क्या है बताइए? Logic and aesthetics. Very good. Logic and aesthetics. These are the 5 branches of philosophy. 5 branches of philosophy. These terms might be in the first sight appear to be tough and difficult. Metaphysics, epistemology, क्या भारी भारी चीजों की बात हो रही है? कुछ नहीं. Now see that what is the most basic question which comes to your mind with respect to your life and existence. What could be the most basic question जो हम सब के दिमाग में आता है? What after death? उससे भी जो बेसिक है, जीवन ही क्यों, उससे भी बेसिक. अबाउट एग्जिस्टेंस, क्या मतलब मैं कौन हूं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है. हु एम आई? हु एम आई? ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज माय आइडेंटिटी? फ्रॉम वेयर डिड आई कम? दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. और कैन बी देयर समथिंग मोर बेसिक with respect to your individual existence? No. Who am I? So it is dealing with reality. Philosophy, it deals with reality, the questions of reality. So the subject or the branch of philosophy in which we deal with reality, we try to find out what is reality. Is there any ultimate reality? What would be real? What would be unreal? How would we categorize between real and unreal? That branch of philosophy is called metaphysics. उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स. मेटा मतलब बियॉन्ड होता है, एंड फिजिक्स इट डील्स विद रियलिटी. यू नो, अंडर फिजिक्स वी डील विद द रिलेशंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट्स. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? द रिलेशंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट्स. सो मेटाफिजिक्स, व्हाट इज बियॉन्ड दिस? व्हाट इज बियॉन्ड दिस? द लार्जर क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी. व्हाट इज रियल? किसको रियल कहेंगे? इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन दैट इज योर लाइफ रियल, व्हाट वुड यू से? इफ आई आस्क यू that if is your life real? We can't answer. अच्छा, तो इससे क्या होगा कि अब फिलॉसफी में इस पोजीशन को हम स्केप्टिसिज्म बोलते हैं कि भाई हमारे पास आंसर नहीं है ना. सो वी कैन नॉट हैव आंसर्स. एक पोजीशन है एग्नोस्टिसिज्म का. एग्नोस्टिक्स कहते हैं कि राइट नाउ वी डोंट हैव द सॉल्यूशन, आवर माइंड हैज नॉट रीच्ड टू दैट स्टेट, इन फ्यूचर वी कैन हैव सॉल्यूशन. यू नो, एग्नोस्टिसिज्म. तो इससे क्या व्यक्ति के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए? क्या उसका समाधान मिल गया? क्या उसका डाउट एड्रेस हो गया? नहीं हुआ.
सो इज दिस अ फेवरेबल पोजीशन फिलोसॉफिकली? क्या ये पोजीशन, क्या स्केप्टिसिज्म लॉजिकली एक फेवरेबल पोजीशन है? क्या व्यक्ति यहां पर ठहर के संतुष्ट हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं जान ही नहीं सकता? नहीं। अच्छा, सो इफ वी आस्क दीज क्वेश्चंस दैट व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल, इफ आई से कि क्या ये जो वस्तु है, दिस वुडन पोडियम, यू नो, इज इट रियल? व्हाट वुड यू से? इज इट रियल हियर? इज इट रियल, दिस पर्टिकुलर थिंग? एम आई रियल? Am I real? So 1 hour ago I was not standing here. In that case, what is the status of my reality? Maybe half an hour, 1 hour after now, means, you know, I will not be standing here. Then what is my reality? Maybe after, you know, 30-40 years, I presume that I should live at least 80-90 years. I want a long life, you know. So after, you know, some 40-50 years, so I won't be here. Then what is the status of my reality? Some decades ago I did not exist. Then what is the status of my reality? Is my reality actually real? Are you getting the question? Is my reality actually real? Then what is real? How would you coherently and systematically in a logical manner define it? Is it an easy thing to do? Since millenniums, the excellent the humanity could have produced, they have tried to answer this. And still their systems have flaws. The best of us across the world, I am not talking about the national boundaries, the best the humanity could produce, Socrates, Gautam Buddha, Plato, Shankaracharya, Vallabhacharya, in the modern times people like Gandhi, you know, all these individuals. So the question is that when we deal about reality, when we study reality in a logical way, that is called metaphysics. ठीक है? So the branch of philosophy in which we study reality in a logical and persistent manner, what is real, what is unreal, what is ultimate reality. If I am not real, if my reality is subject to time, if I asked you that am I real, you could have answered that your reality is subject to time, means I was not here some time ago, I will not be here after some time, means no, after a few decades I won't be existing at all, I will die. I was not here few decades ago, you know. So my reality, that is subject to time. So my reality is temporal. My reality is temporal. All of us, we have a temporal reality. We exist for some time in this reality. Is it clear? Now, then if there is something temporal reality, can there be an eternal reality? The logical possibility is there. The logic says that if there is something temporal, then there must be something which is eternal also, which is always there, which was always there, which will be always there. Is it not? तो सबसे पहले तो कि भाई क्या होगा, अब उसका नेचर कैसा होगा, क्या होगा वो, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, फिर टाइम के साथ उसका रिलेशन क्या होगा. आर यू गेटिंग दीज आइडियाज? जो मान मेरा टाइम के साथ रिलेशन क्या है, क्या आई मीन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इफ देयर इज समथिंग इटर्नल, is it within time or beyond time, or beyond time and not time? All the possibilities are there. So these are very interesting questions to think upon. This is metaphysics. Welcome to metaphysics. Okay, now this is epistemology. Such interesting a subject, you know, it opens up your mind and it empowers you to look at things in a way you have never looked upon, you know. So epistemology, what is the meaning of Greek term episteme? Meta is also a Greek term. Meta means beyond. What is beyond physics? Means what we see as the temporal reality. This is temporal reality, entire thing. You know, these walls, few years ago, these walls would not be there. You know, after some time, the walls will not be there. After some time, a tree might not be there. A tree is standing right now after some time. So the entire reality is temporal. Temporal means subject to changes in time. हर चीज बदल रही है ना, या कुछ ऐसा है जो स्थिर है. मनुष्य की मूर्खता स्थिर है. मनुष्य पहले भी मूर्ख था, अब भी मूर्ख है ना. सो आवर स्टूपिडिटी इज परमानेंट. ओके, तो हर चीज बदल रही है ना. सो थिंग्स आर चेंजिंग, यू नो. सो एज थिंग्स आर चेंजिंग, सो इज देयर समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग, विच इज परमानेंट? नथिंग इज परमानेंट. दैट इज वन फिलोसॉफिकल पोजीशन. हेराक्लिटस ने ये बात कही थी, नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट. पार्मेनिडेस उन्होंने कहा कि नहीं, नथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज परमानेंट. जो आप देख रहे हैं बदल रहा है, वो वास्तविक में बदल ही नहीं रहा. शंकराचार्य ही सेड दैट नो, देयर इज एन इटर्नल रियलिटी, ब्रह्म, और जो बदल रहा है वो माया है, वो आपका इग्नोरेंस है, वो आपको भ्रम हुआ है, वो मिथ्या है.
शंकराचार्य ने माया का सिद्धांत दिया ना, डोंट टेक पेन इन योर माउथ, ओके। सो दैट वी स्टडी अंडर मेटाफिजिक्स, ठीक है। आगे सब पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, यू नो। एट टाइम्स आई आस्क स्टूडेंट्स व्हाट डू यू थिंक ऑफ फिलॉसफी, एज आई आस्क्ड यू, तो उनको लगता है कुछ भूत प्रेत आत्मा ईश्वर इस तरह की बातें होती होंगी, यू नो। तो वो सभी चीजें होती है पर तार्किक तरीके से होती हैं। ईश्वर क्या है, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, एंड इफ अदर देन गॉड देयर कैन बी सम अल्टीमेट रियलिटी। प्लेटो सेड यस, देयर इज एन अल्टीमेट रियलिटी अदर देन गॉड एंड ही कॉल्ड इट गुड। प्लेटो ने कहा कि जो गुड है, प्लेटो की थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि आप सबको फिलॉसफी अपनी परीक्षा के अलावा भी पढ़नी चाहिए, आपको लाइफ को, जीवन को देखने का एक अलग ही नजरिया देता है। प्लेटो सेड दैट यस देयर इज समथिंग व्हिच इज सुपीरियर देन गॉड, दैट इज गुड। उन्होंने कहा कि ईश्वर का कैरेक्टरिस्टिक क्या, ईश्वर अच्छा है, ईश्वर अच्छा है, ईश्वर अच्छाइयों से भरा हुआ है। तो अच्छाई फिर उससे भी एक लार्जर आइडिया हो गई। सो प्लेटो सेड गुड। अच्छा, नाउ द सेकेंड थिंग इज एपिस्टेमोलॉजी। द ग्रीक टर्म एपिस्टेमे मीन्स नॉलेज। एपिस्टेमे, एपिस्टेमे का मतलब क्या होता है, नॉलेज। सो द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एपिस्टेमोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। अब हर सब्जेक्ट में आप नॉलेज गेन करते हैं और फिलॉसफी में आप नॉलेज को ही पढ़ते हैं कि नॉलेज ही क्या है। In other subjects, in political science, you can have the knowledge of political relations, the political affairs, the political institutions, the political rights, the knowledge of those things. But in epistemology, you study knowledge itself. What is knowledge? What would classify as knowledge? What are the sources of knowledge? What is valid knowledge? What is invalid knowledge? What is true knowledge? What is false knowledge? Is knowledge possible at all? If it is possible, how can we get it? So this analysis of knowledge is done in the next branch of philosophy, that is epistemology. The primary question was who am I, मैं कौन हूं। The next question is if I am real, how can I know about myself? Are you getting the point? अगर मैं हूं तो खुद को जानूंगा कैसे? So that is the second branch of philosophy, that is how to know what is knowledge itself. Is knowledge possible? That is epistemology. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब जैसे आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम ये चीज जानते हो, ये दीवार का रंग क्या है तुम जानते हो, आप कहेंगे हाँ मैं जानता हूं। अब वो फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि फिर तू जानने को क्या कहते हैं, क्या तुम जानने को जानते हो, डू यू नो नोइंग। सो इन एपिस्टेमोलॉजी वी अटेम्प्ट टू नो नोइंग, यू नो, टू नो नोइंग, जानने को जानना। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, अच्छा। अब थर्ड थिंग इज एथिक्स। व्हाट इज देन एथिक्स। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि भाई मैं कौन हूं, हु एम आई, आप कौन हैं, ये सभी चीजें कौन है, क्या है, क्या कोई अल्टीमेट रियलिटी है। दूसरा हो गया कि मैं उस रियलिटी को जानूंगा कैसे, जानूंगी कैसे कि कुछ रियल है भी कि नहीं। और तीसरा, द थर्ड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज एथिक्स। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, है ना, कि अगर मैं हूं, मैं खुद को जान भी लूं तो मैं आचरण कैसा करूं, हाउ शैल आई कंडक्ट माई सेल्फ, what would be considered as a good conduct, what would be considered as a bad conduct, how shall I conduct myself, what would be the criteria for good, what would be the standard for good and bad. So a systematic logical study of good and bad in human conduct. और केवल गुड और बैड तक ही वो लिमिटेड नहीं है, फिर वो ये पूछेगा कि गुड क्यों मैं गुड कंडक्ट करूं, और ये सभी चीजें आपको क्यों एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ताकि इन एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट गुडनेस इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. You must have clarity that what is the purpose of your job, what is the ultimate purpose of your entire activity in civil services. Is it only temporal, सैलरी कमा लिया, गाड़ी पर घूम लिया, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दिया, क्या केवल इतना ही उद्देश्य है सिविल सर्विस का? Nowadays they have a new duty, content creation, you know. The point is that what is the ultimate objective of doing something, you know, what is the why are you studying at all, why you are, means why shall I serve the people? Then somebody can say that you should ensure justice. Then you can ask a consequential follow-up question. What is justice itself? Why do we need justice? Let there be injustice in society. क्या दिक्कत है इसमें? Then there will be counter argument. You will further counter it. So you must have a clarity of purpose. That is why you have to study this particular subject. It brings the clarity of thought, you know. So the next thing is ethics, the study of right and wrong, the study of goodness and badness in human
कंडक्ट, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस आधार पर, ये नहीं कि ईश्वर ने कहा, किसी धर्मगुरु ने कहा, कोई बाबा ने कहा, किसी किताब में लिखा है, गुडनेस एंड बैडनेस बेस्ड अपॉन लॉजिक। कांट सेड इट मोरल इंपेरेटिव, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कांट सेड दैट इट इज एग्जिस्टेंशियल ड्यूटी टू बी गुड, जैसा गांधी जी ने अपने डियोंटोलॉजिकल एथिक्स में कहा कि हमें अच्छा इसलिए होना चाहिए कि कोई कह रहा है इसलिए नहीं, ये हमारे अस्तित्व से ही डिराइव होता है। वी आर एग्जिस्टिंग, वी शुड बी गुड। सो दिस इज द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ऑफ इमैनुअल कांट। आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एथिक्स हो गया। द नेक्स्ट थिंग इज लॉजिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। पहला हमने देखा कि मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, ब्रह्मांड दुनिया क्या है, यू नो। द सेकेंड थिंग इज कि अगर कुछ है तो मैं उस चीज को कैसे जान सकता हूं या जान सकती हूं। तीसरी चीज कि भाई अब जान भी लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शैल आई डू, व्हाट वुड काउंट एज गुड, व्हाट वुड काउंट एज बैड। द फोर्थ थिंग इज हाउ टू थिंक प्रॉपरली। अब जैसे डिफरेंशिएटर की हमने बात की, एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल और एक फिलोसोफर के बीच में, तो हमने क्या पाया, पीछे से ध्यान दीजिए, यू नो, एवरीथिंग यू विल गेट इन नोट्स, so focus on the discussion, try to understand, it will be then easier when you revise notes as well. तो अभी तक हमने ये देखा। now the question arises that what is good and what is bad, how shall I conduct myself. Then we come to what is thinking. The differentiator was that a philosopher has a logical thinking, and an ordinary person cannot have a logical approach towards problems. What is logic then? तर्क क्या है फिर? somebody can ask you कि भाई लॉजिकल बनो, लॉजिकल तरीके से सोचो, so you can put a question to that person, what is logic. दोबारा कभी नहीं बोलेगा, है ना, कि पहले तो तुम ये बताओ कि लॉजिक क्या है, तो उसका पसीना छूट जाएगा। अरस्तु को कई साल लग गए लॉजिक के प्रिंसिपल्स डिराइव करने में, यू नो। देन व्हाट इज लॉजिक? इज द करेक्ट वे ऑफ रीजनिंग। व्हाट इज लॉजिक? इट इज द करेक्ट वे ऑफ रीजनिंग, हाउ टू रीजन करेक्टली, हाउ टू रीजन इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। साइलोगिज्म्स आपने देखे हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दस द थर्ड स्टेटमेंट ये इन्फरेंस सही होगा। तो अगर हम 2-3 स्टेटमेंट पे बेस करके कोई भी एक लॉजिकल इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं तो उस पर क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। उस तरीके की आते हैं ना कि इफ ऑल काउज आर कैट्स, इफ ऑल कैट्स आर डंकीज, यू नो, तो उससे क्या होगा, क्या सभी डंकी काउज हैं, तो आप जो इन्फरेंस निकालते हैं वो करेक्ट वे ऑफ रीजनिंग है। सो लाइकवाइज मल्टीपल सच टूल्स वेयर derived by the philosophers, that what is the way of correct reasoning and which step we should follow in order to reason in a correct manner. So that is the subject of logic. तर्क शास्त्र हिंदी में बोलते हैं, तर्क शास्त्र। तर्क कैसे किया जाए, तर्क करने का सही तरीका क्या है, क्या उसके स्टेप्स हैं, that we study under logic. And the final thing is aesthetics. अब सब कुछ हो गया, अब उसने तर्क करना भी सीख लिया। Now the final, you know, branch of philosophy, that is aesthetics. What is the subject matter of aesthetics? What is the subject matter of aesthetics? Have you heard this term aesthetics? What it is related to? आप बताइए, एस्थेटिक्स आपने सुना ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। एस्थेटिक्स सुना है ना, किस चीज से जोड़ते हैं उसको? रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। और बताइए, ब्यूटी से, मीन्स एस्थेटिक्स इज रिलेटेड टू ब्यूटी। व्हेन वी, हाँ बताइए, टेल। appearance, okay, appearance, presentation, as you said, you know, ultimately beauty. When we hear something, we say, oh, what a melodious song, what a beautiful song. When we see an individual, we say, what a beautiful person he is. When we, you know, come across some book, what a beautiful book, what a beautiful thought, what a beautiful scenery, what a beautiful situation, what a beautiful environment, what a beautiful evening. So you get that sense. कोई शाम है, कोई सुबह आपको सुंदर लगती है ना, है ना, वो तो कोई चीज नहीं है, कोई एक चीज नहीं है, कोई कहीं कोई खड़ा हो, दैट सेंस ऑफ ब्यूटी इन यू, नो। कोई व्यक्ति कहते हैं अरे कितना सुंदर व्यक्ति, कितने सुंदर इसके विचार हैं, दैट सेंस ऑफ ब्यूटी, फ्रॉम वेयर डज इट कम, व्हाट इज ब्यूटी इटसेल्फ, व्हाट मेक्स समथिंग ब्यूटीफुल, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी. सो ऑल दीज थिंग्स वी एनालाइज एंड स्टडी अंडर एस्थेटिक्स. बात आ रही समझ में? ब्यूटी क्या है अपने आप में, एंड ब्यूटी इज नॉट ओनली फिजिकल ब्यूटी, यू नो, देयर इज समथिंग मच बियॉन्ड फिजिकल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ अपीयरेंसेस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेंसेस विच वी डिराइव बाय इंट्यूशन. जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी व्यक्ति से मिले
आपने कहा यार कितनी अच्छी बातें करता है व्यक्ति, कितनी सुंदर बातें करता है, तो वो जो सुंदरता का बोध आपके मन में उस व्यक्ति से मिलकर आया, आपने कुछ खाया, आपने कहा आह मजा आ गया, क्या सुंदर भोजन है, तो भोजन सुंदर कैसे हो सकता है, पर वो भाव आपके अंदर आया ना। आप कहीं किसी जगह गए, आपने कहा अरे वाह क्या मतलब कि स्थान है, व्हाट अ नाइस ब्यूटीफुल प्लेस, सो वो जो ब्यूटी का सेंस है वो क्या है फिर। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एरियाज ऑफ फिलोसफी, यू नो, एस्थेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एरियाज, क्योंकि कोई चीज किसी के लिए ब्यूटीफुल हो सकती है, दूसरे के लिए नहीं हो सकती, तो बहुत सब्जेक्टिव है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड एरियाज ऑफ फिलोसफी, एस्थेटिक्स। सो दीज आर दी वेरियस ब्रांचेज। इज इट क्लियर एवरीवन, किस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं? और आगे ध्यान दीजिएगा, आई विल यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली, frequently, so don't think it was just one time exercise. In the entire discussion from now on, I will be keep on referring to metaphysics, epistemology, ethics, aesthetics, logic. You have to be very mindful of what I am meaning by those terms, क्योंकि आपके सिलेबस में वो सभी चीजें हैं। चारवाक का मेटाफिजिक्स पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेटाफिजिक्स क्या है। न्याय का एपिस्टेमोलॉजी पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी। इज इट क्लियर? Okay, what is metaphysics? Theory of reality, study of reality, what is real and real. Epistemology, theory of knowledge. Ethics, theory of good and bad, right and wrong. What is logic? Theory of correct reasoning, how to think in a right appropriate way. And finally, what is aesthetics? The theory of beauty. No, और theory का मतलब किसी चीज को एक्सटेंसिवली पढ़ना, इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, क्रिटिकली पढ़ना, उसमें जो भी चीजें आती हैं सब चीज को पढ़ना, उसमें how, what, why, you know, all these things. Fine. Is it clear? So what is the nature of philosophy? How many branches of philosophy? Everyone understood? कोई डाउट इसमें? क्या इसको याद करने की जरूरत है? Has it to be remembered? Not at all. तो अगर आप इसको इसी लॉजिकल फैशन में समझ गए, so it is a very easy subject. अदरवाइज आप ये 5 शब्द किसी को याद करने दे दें जिसने पहले नहीं सुना हो, तो 10 मिनट तक तो उसको इसका स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा, है ना, कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, और फिर याद करेगा तो फिर आधे घंटे बाद भूल जाएगा। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड इट बिकम्स वेरी इजी, कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरे सब्जेक्ट का यही नेचर है। कठोपनिषद, इट इज वन ऑफ द मेजर उपनिषद्स, यू नो, सभी को पढ़ना चाहिए। तो उसमें द मेजर हाईलाइट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन यम एंड नचिकेता, यम द गॉड ऑफ डेथ एंड नचिकेता सन ऑफ वाजीश्रवा। तो नचिकेता छोटा बच्चा रहता है, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ थिंग्स, आप उसको पढ़िएगा और पूरा कठोपनिषद पढ़ जाइएगा, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक यू नो वर्क ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। तो उसमें नचिकेता ने हट कर दिया, वाज यू नो वेरी स्टबॉर्न अबाउट आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज डेथ। उसने गॉड ऑफ डेथ से पूछा कि नहीं अब तुम मुझे बताओ ही, 3 वरदान दिए थे, वो 3 वरदान मांग लो, 2 मांग लिया कुछ इधर उधर, मेरे पिता को माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हो गया ठीक। तीसरा बोला व्हाट इज डेथ, टेल मी, मृत्यु क्या है मुझे बताओ। यमराज ने कहा भाई तुम मेरा बिजनेस बंद कराएगा मैं मृत्यु का देवता हूं, तुम मुझसे पूछ रहा है मृत्यु क्या है, मेरा तो काम ही खत्म हो जाए, कौन डरेगा मेरे से। सो अल्टीमेटली ही सेड डेथ इज नथिंग, डेथ इज एन इल्यूजन। कठोपनिषद में यम ने कहा कि मृत्यु भ्रम है, इट इज एन इल्यूजन। दिस इज द हाइट ऑफ यू नो इंडियन फिलोसॉफिकल थिंकिंग। लाइकवाइज philosophy is nothing, it is just a fear, you know, it is not a difficult subject, very easy. Now we will come to the interrelationship between philosophy and religion. philosophy को हम भारत में दर्शन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम? भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र कहते हैं। और दर्शन शास्त्र जो शब्द है इसका अप्रोच बहुत अलग है, और फिलॉसफी जो टर्म है उसकी परिभाषा से अलग अप्रोच निकलता है सब्जेक्ट का। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे अभी आगे तो उसको देखेंगे। कितने बजे तक क्लास है? So the schedule time is 10, you know, we started late. Okay. So the relationship between philosophy and religion. The relationship between philosophy and religion. What is the meaning of philosophy? We have understood. Anyone, any doubt with respect to this? क्या अभी भी किसी को फिलॉसफी की मीनिंग में कोई दिक्कत है? फिलॉसफी क्या है अपने आप में? आपको लिटरल मीनिंग पता है और उसका नेचर कैरेक्टरिस्टिक पता है कि फिलॉसफी है क्या? Is it clear, everyone? Okay. Now what is religion? What is religion? Most of us, we are followers of some religion. Few of you might not be following any religion, you know. तो religious लोग भी होते, irreligious लोग भी होते.
तो रिलीजन क्या होता है? व्हाट इज रिलीजन? टेल मी. अच्छा, so it is the faith of an individual towards some particular supreme soul. Fine, very good. What else? Is there something else? Only faith? Does religion involve only faith? Collective faith. Okay, so it can be collective faith. Then it comes into the definition of organized religion. Organized religion जो संगठित धर्म है ना? तो organized religion का characteristic होता है collective faith. It must be having a number of followers. Okay. What else? Only faith? क्या आप अपने धर्म के प्रति practices as well, you know, it involves faith and such faith generate beliefs. आप अगर किसी चीज को मानते हैं तो उससे जुड़े आपकी आस्थाएं जन्म लेती हैं, you know, जन्म लेती हैं. जैसे आप मान लीजिए आप मानते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, so this is your faith. Does it have any rational basis? क्या इसका कोई rational basis है? कोई rational basis नहीं. आपका faith है कि कोई ऐसी शक्ति है जो सबसे सर्वशक्तिमान है. फाइन. उससे क्या बिलीफ डिराइव होता है? अब अगर वो शक्ति सर्वशक्तिमान है तो आपको जब भी कोई दिक्कत आएगी आपको बचाएगा. नाउ दिस इज योर बिलीफ. इज इट नॉट? होता है कि नहीं होता है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि एकदम कोई धर्म मानते नहीं. इज देयर समबडी हु इज, यू नो, हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन? कोई ऐसा व्यक्ति है? अच्छा, ठीक है. सो देयर शुड नॉट बी एनी रिलक्टेंस, यू नो. फाइन. सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पोजिशन, नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन. सो religion, it involves faith that there is some superior being. Now this is a faith. There is somebody who has created you. This is a faith. This is an item of faith. Now the belief is that if the body is the creator who has given birth to you, so it will protect you in times of crisis. This is a belief. ये क्या है? आपकी belief है कि जब भी संकट होगा या आपके साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है सब उसी के कारण हो रहा है. हम मानते हैं ना ऐसा. तो ये बिलीफ है. और प्रैक्टिस क्या है फिर? इन इफ यू थिंक दैट देयर इज सम सुप्रीम बॉडी एंड यू हैव द अल्टीमेट कनेक्शन विद दैट बॉडी, यू हैव द हाईएस्ट डिवोशन फॉर दैट बॉडी, सो यू एक्सप्रेस योर डिवोशन थ्रू मल्टीपल एक्ट्स. आप उस डिवोशन को मल्टीपल एक्ट से एक्सप्रेस करते हैं ना, या नहीं करते? केवल मान के छोड़ दिया, अब चलो भाई अब तुम मुझे देखो बचाओ, अब तुम्हारा काम है, अब तुम जानो. हाँ, उसके अलावा भी कुछ करते हैं. क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, है ना. सो रिलीजन दे आर मच कॉम्प्लेक्स एंड इलैबोरेट सेट ऑफ ऑल दिस फेथ, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. सो इन द वेस्टर्न फिलॉसफी, हाउ इज रिलीजन डिफाइंड एज? रिलीजन इज अ सेट ऑफ faith, belief and practices centered to an ultimate being, centered towards an ultimate being with highest devotion and commitment involving complete surrender. बात आ रही समझ में? So it is a system of faith, belief and practices centered upon some supreme being, ultimate being, जिसके beyond कुछ नहीं है. ultimate being. What is the relation? Devotional. So it involves devotion and complete surrender of your being, complete surrender. Such a system is called religion. So in Western philosophy, religion is God centric, religion is theistic, God centric. अगर किसी व्यवस्था में ईश्वर नहीं है तो उसको रिलीजन मानते ही नहीं. ठीक है. अच्छा, भारत में यदि आप देखें तो रिलीजन का हिंदी क्या होता है? धर्म होता है. तो क्या धर्म उसका सही हिंदी ट्रांसलेशन है? तो सही हिंदी ट्रांसलेशन क्या है रिलीजन का? पंथ है. हमारे यहाँ जो हम धर्म कहते हैं तो उस धर्म का अर्थ कुछ अलग होता है. इट इज मोर रिलेटेड टू मोरल ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल रादर देन इट्स रिलेशनशिप विद गॉड. ओके. भारत में जब हम धर्म की बात करते हैं तो एक मनुष्य के रूप में हमारा जो धर्म है, आप विद्यार्थी हैं, यू आर ए स्टूडेंट, सो यू हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म, यू हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी कमिटेड टू योर पर्पस, सो दैट इज योर स्टूडेंट्स ड्यूटी. ये विद्यार्थी धर्म है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटीजन्स, so we have to keep the nation clean, we have to ensure that the society remains crime free, we have to help each other. किसी की दुर्घटना हो गई, you have the duty to rescue the person. ये नागरिक धर्म है, मानव धर्म है. एक मनुष्य होने के नाते किसी को भी संकट से बचाना. तो जो आपके नैतिक कर्तव्य है इन इंडिया, हाउ वी अंडरस्टैंड धर्म? वी अंडरस्टैंड धर्म एज मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और बीइंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. इफ से मान लीजिए कि इफ यू आर अ डॉक्टर, सो योर ड्यूटी इज टू हील एंड क्योर द पेशेंट्स. ओके.
तो भारत में जो धर्म का विचार है इसका संबंध नैतिक दायित्व से है, मोरल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज से। इज इट क्लियर? तो जब लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें फिलॉसफी और रिलीजन के बीच में इंटर रिलेशन की बात की गई है, सो वी विल टेक इट इन द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। वेस्ट में जो रिलीजन का आइडिया है, अब उनके लिए वो गॉड सेंट्रिक है, इसीलिए भारत में देयर वर सिस्टम्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म, सो द वेस्टर्न थिंकर्स डिड नॉट कंसीडर देम एज रिलीजन एट ऑल। वो उसको रिलीजन मानते ही नहीं थे। उनका कहना था कि भाई इसमें ईश्वर तो है नहीं, बुद्धिज्म में कोई गॉड है नहीं है, बाद में उन्होंने बुद्ध की ही बड़ी बड़ी मूर्ति लगा के उन्हीं का पूजा करना शुरू कर दिया। जैनिज्म में कोई गॉड है नहीं है, गॉड का आइडिया ही नहीं, तीर्थंकर का विचार है, बाद में सभी के मूर्ति बड़े बड़े बना के। एक बार मैं एक जैन मंदिर में गया तो उसमें शाम का समय था, 6 बज रहा था, जाते के साथ मैंने घंटी बजा दी, मेरा आदत है ना, कहीं भी जाता हूँ मैं ऐसे ही, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता, ऐसे ही अगल बगल वाले परेशान हो जाए। तो 4 5 6 दौड़ते आ गए, उनका क्या है आपको पता है, अभी भगवान सो रहे हैं, अभी हमारे मुनि सो रहे हैं, तीर्थंकर सो रहे हैं। हम कहे अच्छा दुनिया कौन चलाता? तो कहा कि भाई ये तो जो है तीर्थंकरों ज्ञान से सोते, हमको वो सो रहे हैं तो दुनिया चल कैसे रही है फिर। तो वो आदमी चला गया, उसको लगा ठीक आदमी नहीं है ये, है ना, ये थोड़ा सा आदमी ठीक नहीं लग रहा है, तो चला गया। सो द पॉइंट इज दैट अब उनके यहाँ भी सिस्टम में गॉड नहीं है। तो जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि ये व्यवस्थाएं रिलीजन नहीं है, दे आर एथिकल सिस्टम्स, यू नो। सो when we talk about religion, we will talk about this particular perspective, the western perspective. भारत में जो वेस्टर्न इक्विवेलेंट ऑफ रिलीजन है उसको हमने पंथ कहा है। क्या कहा है? पंथ कहा है, संप्रदाय कहा है, पंथ कहा है। नाउ व्हाट कैन बी टाइप्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन? इट कैन बी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, इट कैन बी सिमिलर एंड डिससिमिलर, दे कैन अग्री ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, दे कैन डिसएग्री ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। दो ही तरीके के संबंध हो सकते हैं ना, या तो संबंध अच्छे होंगे या बुरे होंगे या न्यूट्रल होंगे, यही हो सकता है। There are only 3 possibilities. So religion and philosophy, they might agree on multiple things, might disagree on multiple things, might be neutral in various aspects. Okay. So now can you tell me that what are the areas of similarity or agreement between religion and philosophy? The areas of agreement, where do they agree? What are various areas of agreement? Religion आपने समझ लिया. What is religion? It is a set of belief, faith and practices which is directed towards an ultimate being, some transcendental being which is not part of this world, means something transcendental, much powerful, ultimate being. Involves devotion, involves complete surrender and is expressed in multiple practices. इधर ध्यान दीजिए, you know, knowledge is achieved by attention. सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए दुर्घटना नहीं घटे, विषय को एकदम ध्यान से समझिए, अदरवाइज इट विल ट्रॉमेटाइज यू। टेक माई वर्ड्स, जब क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे ना तो फिर आपको तकलीफ होगी, वो तकलीफ आपको नहीं हो, इसलिए एकदम अभी जागृत रहिए। सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट आर द वेरियस एरियाज ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। सो व्हाट कैन बी? They both believe in something eternal. So as I started my discussion, so we understood that there is no space for belief in philosophy. इस चीज को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि there is no space for belief in philosophy. फिलॉसफी में बिलीफ का कोई जगह ही नहीं है. Only logical and rational ideas have their place in philosophical systems. If something is out of human reasoning, if something is produced out of critical thinking, लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, दैट ओनली कम्स अंडर द फिलोसॉफिकल सिस्टम. ठीक है, तो द एम्बिट ऑफ और द स्कोप ऑफ बिलीफ इज अंडर रिलीजन. देयर इज नो स्कोप फॉर बिलीफ एंड फेथ इन फिलोसफी. फिलोसफी का उससे कोई लेना देना ही नहीं है. फिर वो उसकी बिलीफ को स्टडी करने लगेगा फिर वो उसके बिलीफ का क्रिटिकल थिंकिंग करने लगेगा, है ना. अच्छा ठीक है, एनीवे गुड अटेम्प्टेड. और बताइए व्हाट कैन बी द सिमिलर एरियाज बिटवीन फिलोसफी एंड रिलीजन? डू यू? While we were trying to understand philosophy, we were talking about the terms like God, the ultimate reality, supreme being, soul, individual, death, you know, life, all those things. So are not these subject matters dealt in religion as well? क्या religion भी इन subject matters से deal करता है या नहीं करता है? करता है ना. Okay, so there are multiple subject matters which are common in both philosophy and religion. Both aim to explain the ultimate reality of life. उनके तरीके अलग हो सकते हैं पर दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? दोनों अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करना चाहता है. इन रिलीजन यू हैव द आंसर इन द फॉर्म ऑफ सुप्रीम बीइंग. इन फिलॉसफी यू कैन हैव मल्टीपल आंसर्स.
ranging from there is no supreme being or there is a particular supreme being, multiple types of supreme being, substances, you know. वेस्टर्न फिलोसफी हम आगे पढ़ेंगे, कई सारे उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी थेरीज दी। गौतम बुद्ध जैसी पोजीशन हो सकती है, बुद्धा सेड अवक्तव्यम, उन्होंने कहा मैं इस पर कुछ बोलूंगा ही नहीं, ये फालतू के विषय है, इस पर कितने भी आप स्पेकुलेट कर लें, कितनी भी बात कर लें, इसका कोई हल निकलने वाला है ही नहीं, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, इनके कभी भी सेंसिबल लॉजिकल डिस्कशंस हो नहीं सकते। सो ही नेवर स्पोक ऑन दोज थिंग्स। आगे जाएंगे बुद्ध में तो पढ़ेंगे। सो देयर आर 3 पोजीशंस, ठीक है। तो लेकिन दोनों अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं या नहीं करते हैं? दे बोथ ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल थिंग्स। फिलॉसफी में सेपरेट ब्रांच है मेटाफिजिक्स, ट्रांसेंडेंटल थिंग्स की बात करता है, सोल। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। हम्म हम्म हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो डिवोशनल है। हाँ 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 वो लॉजिकली उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अप्रोच में अंतर है, पर सब्जेक्ट मैटर में तो सिमिलैरिटी है ना। दोनों एक ही विषय का अध्ययन कर रहे हैं ना, एक ही चीज का समाधान पाने का प्रयास कर रहे हैं। दे बोथ आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, इज देयर एनी अल्टीमेट रियलिटी। रिलीजन सेज यस इट इज गॉड, फिलॉसफी सेज अदर देन गॉड आल्सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। आगे पढ़ेंगे उसको। तो सब्जेक्ट मैटर सेम है। जब हम लोग डिसएग्रीमेंट में आएंगे, डिफरेंस में आएंगे, देन वी विल सी दैट द मेथड एंड अप्रोच इज इंटायरली डिफरेंट। वो डिसएग्रीमेंट के एरियाज है ना, वो डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों अल्टीमेट रियलिटी, ट्रांसेंडेंटल बीइंग्स, ट्रांसेंडेंटल ऑब्जेक्ट्स, उसके विषय में चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल गॉड, सोल, यूनिवर्स, रियलिटी। क्या धर्मों में यूनिवर्स को लेकर अपने अपने थ्योरीज नहीं है? यूनिवर्स को लेकर बाइबल कहता है कि ईश्वर ने पूरी सृष्टि 6 दिन में बना दी। बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट। 6ठे दिन मनुष्य को बनाया, पूरी सृष्टि बना ली 6 दिन में, 6ठे दिन आदमी को बनाया। 7वें दिन कोई काम बचा ही नहीं, आदमी ने कहा अब तुम निकलो, अब मैं देख लूंगा, है ना। सो द पॉइंट इज दैट देयर आर एक्सप्लेनेशंस फॉर द कॉस्मिक क्वेश्चंस एज वेल इन रिलीजन। अब हिंदू धर्म की बात करें, वो क्या कहता है कि धरती किस पर टिकी है? शेषनाग के फन पर टिकी, है ना। सो लाइक वाइज इन मल्टीपल रिलीजन्स। अब जैसे क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी का ये लॉन्ग हेल्ड बिलीफ रहा कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ है, अर्थ सेंट्रिक, अर्थ सेंट्रिक कंसेप्ट। बात आ रही समझ में? पूरे यूनिवर्स के सेंटर में क्या है? अर्थ है। अब उनकी ये कॉस्मोलॉजी है क्रिश्चियनिटी की। बहुत इंबैरेस हुए, गैलीलियो को भी मार दिया। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बना लिया, उसने कहा नहीं नहीं भाई मैं देख रहा हूं, ये तो घूम रही है, हम तो खुद ही सूरज की चारों ओर घूम रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हो बेकार की, ये सभी तारे वारे सभी घूम रहे हैं, हम भी सूरज की ओर घूम रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं अपने दूरबीन से। उसको कहा चलो निकलो, उसको भी जहर दे दिया, गैलीलियो भी मर गए। पर जब बाद में आदमी चंद्रमा पर चला गया, इधर उधर चला गया, अब क्या करते? तो क्रिश्चियनिटी में चर्च ने अपना पोजीशन बदला, नहीं बदलते तो हंसी के पात्र हो जाते। बात आ रही समझ में? सब्जेक्ट मैटर ऑफ मॉकरी। तो रिलीजन और फिलॉसफी में ये आपको कनेक्शंस हैं। द पॉइंट इज दैट रिलीजन इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ऑफ कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू डू सो। आप देखेंगे लेबनिज की थियरी में, डेकार्ट में पूरी कॉस्मोलॉजी है ना। और तो ये सिमिलैरिटी है जो सब्जेक्ट मैटर है। उसके अलावा क्या है दोनों में सिमिलैरिटी? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलोसोफाइजिंग? कोई व्यक्ति दार्शनिक क्यों होता है? कि मैं बर्बाद हो जाऊं, समाज को बर्बाद कर दूं? क्या इस उद्देश्य से व्यक्ति फिलॉसफी करता है? सुकरात की वाइफ उनसे परेशान रहती थी, वो हमेशा 4 लोग को जुटा के ज्ञान देते रहते थे। तो अलग बात है बीवी को परेशान करते थे। और सुकरात में एक और खास बात थी, एक जगह खड़े होते थे तो कई बार 1-1, 2-2 दिन खड़े हो जाते थे, एक ही जगह पर खड़े रहते थे। वो कहा जाता है ट्रांस के स्टेट में चले जाते थे। लोग बोलते थे सोक्रेटिस हैज बीन फिक्स्ड, फिर उनको देखने इधर उधर दूसरे शहर से लोग आते थे, हल्ला हो जाता था सोक्रेटिस हैज बीन फिक्स्ड, सोक्रेटिस इज इन ट्रांस। तो कभी कभी दिक्कत कर देते हैं दूसरों के लिए, पर क्या ऑब्जेक्टिव होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलोसफी? बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। व्हाट डज रिलीजन एम टू? धर्म क्या कहता है? मेरे पास आओ, बर्बाद कर दूंगा। तो क्या बोलता है रिलीजन? सही रास्ता दिखाऊंगा जीवन का, है ना।
एनलाइटनमेंट की बात करता है ना, लीडिंग द पर्सन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोप्राइटी, गुडनेस, मोरालिटी, राइटियसनेस, इसी चीज की बात करता है. सो दे बोथ अटेम्प्ट टू रिफॉर्म एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन एंड सोसाइटल लाइफ. ये एक उनका ठीक है जो उनका ऑब्जेक्टिव है. अच्छा, और क्या है एग्रीमेंट दोनों के बीच में? पॉजिटिव इंटर रिलेशनशिप है क्या? कैन यू थिंक ऑफ सम पॉजिटिव इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ? कैन यू थिंक ऑफ सम पॉजिटिव इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ? Philosophy find it is a critical approach towards things. So does it always have a critical attitude towards religion? Or does it have some positive relationship with religion as well? क्या philosophy से धर्म का केवल नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ? The religious ideas, they are substantiated, justified, promoted by philosophical inquiry. For example, in Christianity, for example in Islam, for example in Hinduism, multiple religions are there where philosophical thinking is utilized to justify the religious ideas. उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी? आप किसी को अपनी बात कैसे मनवाएंगे? या तो तलवार के नोक पर, या फिर उसको अपनी बात से कन्विंस करके. अगर उसको अपनी बात से कन्विंस करना है तो आर्गुमेंटेशन करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तर्क देंगे. ओके, सो देन यू आर फिलोसोफाइजिंग when it is related to the ultimate goal, the fundamental questions of life. So thus, for example, say the Christian beliefs or ideas, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए जो क्रिश्चियन थियोलॉजियंस थे उन्होंने फिलॉसफी का सहारा लिया. उसी तरीके से गौतम बुद्ध, in order to spread his ideas, he took the help of philosophy, rational argumentation. Okay, so both of these, they always do not have contradictory paths. At times they complement each other as well. Where do they complement? In spread and promotion of each other. अब जैसे यदि आप धर्म की बात करें, so there were philosophers like शंकराचार्य. शंकराचार्य की फिलॉसफी कौन सी है? शंकराचार्य का नाम सुना है आपने? शंकराचार्य अद्वैत वेदांत, वेरी गुड. अद्वैत वेदांत का दर्शन दिया उन्होंने. अद्वैत वेदांती थे. अब अद्वैत में वो एक दार्शनिक थे, अद्वैत में भी कई विचारधाराएं हैं, ठीक है, तो शंकर वेदांत अलग है. नाउ शंकराचार्य, इट इज सेड दैट he provided a boost to Hinduism. At that time Hinduism was facing a severe challenge from Buddhism. It was said that the followers of Hinduism and Buddhism, they were at par during that time. So he gave his philosophy of Maya, Avidya, Brahma. So all of these, they gave a boost to Hinduism as it was facing an ideological threat from Buddhism. तो उससे क्या हुआ कि शंकराचार्य के दर्शन से हिंदू धर्म फिर मजबूत हुआ. नाउ द आइडियाज ऑफ शंकराचार्य, फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ माया. आज के समय हर व्यक्ति माया को जानता है. आप पूछेंगे क्या कह देगा, है सब मोह माया, कुछ नहीं है, चलो छोड़ो. अब आप पूछ दें उससे कि माया क्या है, तब वो फंस जाएगा, है ना, कि माया क्या है बताओ, ठीक है मोह माया है तो माया क्या है. सो शंकराचार्य गेव दिस आइडिया. नाउ यू सी दैट इट हैज बिकम सो मच integrated into the common lives of people that we use these terminologies without knowing their actual meaning. So somewhere religion has been a carrier of the philosophical ideas. Religion, it is a carrier of philosophical ideas. Religion is strengthened by philosophical ideas. For example, in the case of Shankaracharya, Buddha, his philosophy, it led to birth of particular religion. Jaina philosophy, it led to birth of particular religion. Okay, so likewise they both have complementary roles as well. At times they strengthen each other. What does philosophy do? It increases the acceptability of religion if it is based upon sound facts. For example, the worship of nature. Most of the religions, they have the component of worship of nature. Dominantly Hinduism, है ना, प्रकृति की पूजा होती है. अब उसमें क्या कहते हैं प्रकृति की पूजा में, किस लिए? अगर उसका कोई साइंटिफिक आपको रैशनल दिया जाए कि इफ वी वर्शिप and assign importance to the forces of nature, we are conserving it, we are preserving the nature, is it not? अब जैसे केरला में सैक्रेड ग्रुप्स हैं, मानते हैं कि ये सैक्रेड हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उनका प्रिजर्वेशन हो रहा है. ये बात लॉजिकल लगती है या नहीं लगती? क्या इससे ये जो धार्मिक विचार हैं कि हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इसको बल मिलता है, मजबूती मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है. सो दीज फिलोसॉफिकल आइडियाज, दे एट टाइम्स स्ट्रेंथन द रिलीजन. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट? हाउ डू फिलॉसफी एंड रिलीजन डिसएग्री? हाउ डू फिलॉसफी एंड रिलीजन डिसएग्री? डू यू थिंक दे डिसएग्री?
बेस्ड ऑन, हाँ, तो सबसे पहली बात की फिलॉसफी जो है ये किस चीज पर बेस्ड है? ये लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है. इट इज बेस्ड अपॉन लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, डाउट. इज देयर एनी स्पेस फॉर डाउट इन रिलीजन? इज देयर एनी स्पेस फॉर डाउट इन रिलीजन? क्या कोई धार्मिक व्यक्ति अपने ही धर्म पर संदेह करता है या करती है? अपने ईश्वर पर संदेह करता है, पता नहीं आज है कल बचाएगा कि नहीं बचाएगा. कहीं निकल लिया तो उसने कहा सो रहा है, मैंने कहा कि वो सो रहा है तो पूरी दुनिया आप चला रहे हो, तो वो साइड निकल लिया. तो कहने का मतलब है कि दीज थिंग्स, लाइक अ पर्सन हु इज अ रिलीजियस डिवोटी डज नॉट क्वेश्चन हिज डेटी. इधर ध्यान दीजिए. तो वो अपने डेटी के ऊपर डाउट नहीं करता. लेकिन एक जो फिलोसफर है उसका धंधा ही यही है, उसका बिजनेस ही यही है, क्वेश्चनिंग, है ना. सो क्वेश्चनिंग इज द वेरी बेसिक aspect of philosophy, which is contradictory to faith, which is an integral aspect of religion. What else? और क्या है दोनों में अंतर? What is the, हाँ बताइए, what is the character of a philosophical person, philosopher? Approaches are different. Fine. What is the approach of a philosopher? Rational approach, critical approach, investigative approach, inquisitive approach. What is the approach of a religious person? हाँ, तो फर्म बिलीवर है. अप्रोच क्या है, कैसा अप्रोच है? व्हाट इज द अप्रोच? डिवोशनल, डिवोशनल अप्रोच, एन अप्रोच ऑफ सरेंडर वेयर देयर इज नो स्पेस फॉर एनी डाउट, एनी डाउट. अब जैसे आप मीराबाई की बात करें, सो मीराबाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भक्ति सेंट्स, तो क्या उनके विचार में आपको कहीं ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि कृष्ण है कि नहीं है, किस स्वरूप में है? नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है. उनको मतलब है इतनी बड़ी मूर्ति है, जो कुछ है यही है, दुनिया जाए भाड़ में. शादी कर दिया मेरा राजा से, हमको उससे मतलब नहीं भैया, हमको तो मेरा तो जो कुछ है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई. बात खत्म हो गई. तो जो रिलीजियस पर्सन है उसका अप्रोच कैसा है? डिवोशनल है, कंप्लीट सरेंडर का अप्रोच है. और जो फिलोसोफर है उसका अप्रोच कैसा है? रैशनल, इंक्विजिटिव, क्रिटिकल अप्रोच है, क्रिटिकल अप्रोच. ठीक. तीसरा अंतर क्या है कि इन फिलॉसफी, सो व्हेन यू हैव क्वेस्ट फॉर नॉलेज, व्हेन यू हैव क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द अल्टीमेट रियलिटी, सो वंस यू फाइंड आउट द क्वेस्ट हैज बीन सेटिस्फाइड, द प्रोसेस इज ओवर. मान लीजिए कोई फिलोसफर है, उसको अल्टीमेट रियलिटी जाननी है, उसने खूब जीवन प्रयास किया, थेरीज दी, अपना जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी लगाया, फिर उसने अल्टीमेट रियलिटी के अपनी समझ को विकसित कर लिया, उसके बाद वो काम खत्म. सो फिलॉसफी इट लीड्स टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट. इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट, फिलॉसफी इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. फिलॉसफी क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. कि जो इंटेलेक्ट के क्वेश्चंस थे, जो डाउट थे, वो रिजॉल्व हो गए, काम खत्म, द प्रोसेस इज ओवर. बट इन रिलीजन, इज दैट द केस? इज रिलीजन एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज? इज रिलीजन एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज? क्या मंदिर के आगे खड़ा होकर व्यक्ति प्रश्न करता है, जवाब करता है, सवाल करता है, खड़े होकर तर्क वितर्क करता है? भगा दिया जाएगा. आजकल तो जो माहौल है, पता नहीं जान बचे भी नहीं बचे, है ना. तो जो रिलीजियस पर्सन है उसकी क्या स्थिति है? रिलीजियस पर्सन का क्या हालत है? इफ अ फिलोसफर आफ्टर गेटिंग सेटिस्फैक्शन हिज क्वेस्ट इज ओवर, his journey is over or her journey is over, but for a religious person this journey is never over. Not in this life, it continues to the another life as well. बताइए समझ में. तो जो रिलीजन है इसमें न केवल इस जन्म की बातें बल्कि अगले भी जन्म की बातें, और उसमें जो कुछ होगा, उसमें जो व्यक्ति का संबंध ईश्वर से होगा, वो सभी चीजें उसमें डिटरमाइन की जाती हैं. सो रिलीजन, it determines your relation with that ultimate reality, and the process is not complete in this birth itself. It goes on, it transfers to the next birth and number of after births if the religion believes in after birth. Many religions are there who don't believe in rebirth, many of them believe in rebirth. तो जो rebirth मानते हैं उसके लिए वो प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी. Is it clear? अच्छा, और क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं? रिलीजन में कई सारे आपको सुपरस्टिशन होते हैं नहीं होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं, बैड प्रैक्टिसेस होती हैं. रिलीजन में इन सभी चीजों को कौन चैलेंज करता है? हु चैलेंजेज ऑल दीज थिंग्स? क्रिटिकल थिंकिंग, फिलोसफी. इट पॉइंट्स आउट दैट भाई ये चीजें जो है इरेशनल हैं, इनह्यूमन हैं, इलॉजिकल हैं, अनएथिकल हैं, इसको ठीक किया जाना चाहिए. सो रिलीजन एट टाइम्स इट में इन्वॉल्व प्रेजुडिसेस.
Religion at times it may involve malpractices, bad practices, unethical practices. It may involve superstitions. धर्म में अंधविश्वास होता है कि नहीं होता है? कोई धर्म ऐसा है जिसमें अंधविश्वास ना हो? बाबाओं की झड़ी लगी हुई है, एक से एक तरह तरह के जो हैं आपको बाबा, सबके पास अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। एक अगर अंतर्राष्ट्रीय बाबा ओलंपिक कराया जाए तो भारत को 300-400 गोल्ड मेडल मिल जाएगा। So the point is that superstition, it is an integral part, it has become an integral part of religion. Now philosophy, it questions it. So at times the philosopher is considered to be a troublemaker. तो क्या समझते करिए, तो ट्रबल मेकर है, ये तो हमारी व्यवस्था खराब कर रहा है। बट what is the ultimate goal of philosophy? To belittle religion, to weaken it, or to further improve it? What is the intent of criticism? The intent of criticism is to make the religion more human, make it more progressive, make it more ethical, make it more consistent. Okay? तो अंतर विरोध यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रिलीजन में सुपरस्टिशन हो सकता है, फिलॉसफी में कोई स्पेस नहीं है। इट डिस्पेल्स सुपरस्टिशन। A logical person is more vulnerable or prone to superstition and prejudices or an illogical person? इधर ध्यान दीजिए, एक illogical person ज्यादा प्रोन है सुपरस्टिशन को लेकर, वल्नरेबल है, या एक लॉजिकल पर्सन ज्यादा प्रोन है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? व्हाट डिड आई आस्क? फिर से बताऊं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए धर्मों में अंधविश्वास होता है, मानते हैं ये बात कि नहीं होता? क्या कोई धर्म ऐसा है जिसमें नहीं अंधविश्वास? सभी में है। तो अंधविश्वास से किस व्यक्ति के प्रभावित होने की संभावना ज्यादा है, एक तार्किक व्यक्ति के या एक जो अतार्किक व्यक्ति है इसके? अतार्किक मीन्स द पर्सन हु इज इलॉजिकल, यू नो। सो इफ द पर्सन इज लॉजिकल देन देयर इज लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग प्रोन टू superstitions and prejudices. So here it appears to be a contradiction, but the ultimate objective or the intent of philosophy of being critical of religion is to reform it for the sake of better humanity. उसका उद्देश्य क्या है? वो पॉजिटिव है। और दोनों कहां पर क्लैश करते हैं? What are the other areas of differences between philosophy and religion? हाँ, अच्छा ठीक है, आपने ये डिफरेंस बताया, अच्छी बात है कि फिलॉसफी में वैसा कोई सुप्रीम बीइंग नहीं भी हो सकता है, देयर कैन बी नो सुप्रीम बीइंग। ओके, अब जैसे हमने अभी बात की चारवाक की, तो चारवाक में कोई सुप्रीम बीइंग नहीं है, मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। बुद्ध की बात की, जैना फिलॉसफी की बात की, तो उसमें कोई आपको अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। लेकिन रिलीजन में कोई ना कोई अल्टीमेट रियलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत में हमने जो इसको समझा है पंथ के रूप में समझा। आप दोनों के बीच अंतर और समानता समझ पा रहे हैं? द सिमिलैरिटी एंड द डिसिमिलैरिटी बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइन। सो likewise in religion and culture, the interrelationship between the religion, the philosophy and culture, which is the next topic, we will similar have particular agreements and particular disagreements. उसमें भी इसी तरीके से। culture is much wider term. What is culture? Can you tell me? What is culture? culture किसे कहते हैं? संस्कृति शब्द culture हम सभी जानते हैं। हाँ बोलिए। प्रैक्टिसेस एक कंपोनेंट है उसका, अच्छी बात है। प्रैक्टिसेस, द सोशल प्रैक्टिसेस, दे आर पार्ट ऑफ कल्चर। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? रिचुअल्स विच आर, तो कस्टम्स है ना, जो रिचुअल्स हम बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं वो कस्टम्स का पार्ट होते हैं। कस्टम्स उसका एक हिस्सा है, जो प्रथाएं हैं समाज में। और गुड और way of living which is prevalent over a prolonged period of time, that is culture. That way of living, it involves ideas, beliefs, principles, the way we interact with each other, the way of living you said, practices you said. आपने क्या कहा पीछे से? हाँ, हमारा खाना पीना, भोजन, हम जैसे बात करते हैं, हमारी भाषा, किस तरीके से हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। सो कल्चर इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, ठीक है। कल्चर इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। नाउ इज फिलॉसफी अ पार्ट ऑफ कल्चर और इज कल्चर अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी? इज फिलॉसफी अ पार्ट ऑफ कल्चर? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फिलॉसफी, यू नो क्या है। सो इज फिलॉसफी अ पार्ट ऑफ कल्चर और इज कल्चर अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी? So culture comes from philosophy. So you are saying that, हाँ,
Okay, so philosophy, it may lead to birth of subculture, you know. So you are saying that culture, it is a subset of philosophy, or philosophy, it is a subset of culture? Now tell me, it is very simple, you know. This is culture, this is philosophy, this is philosophy, this is culture. Tell me which is correct, one or two? How many of you one? Please raise your hand. 3, 4, only 4, 5, 6, 7, number growing. 7 of you. Rest of you, I think आप सभी ये मानते हैं कि अच्छा दोनों नहीं है. अच्छा मतलब अच्छा एक तीसरी पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं ये भी है. ठीक है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं. चलिए. हाँ सेम है दोनों. कहाँ सेम है दोनों? अच्छा ये दोनों सेम है. ओके सॉरी. यस ठीक. तो ये है कल्चर, ये है फिलॉसफी. ठीक है. सो हाउ मेनी ऑफ यू से दैट द सेकंड इज करेक्ट? रेज योर हैंड. ओके ओनली फ्यू. और तीसरे? एंड व्हाट अबाउट द अदर्स, दोज हु डिड नॉट रेज योर हैंड? आपका क्या कहना है? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. एक ही हो सकता है ना, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो ये उसका पार्ट होगा या वो उसका पार्ट होगा. कल्चर इज अ मोर वाइडर टर्म. कल्चर इन्वॉल्व आइडियाज, कल्चर इन्वॉल्व थिंकिंग, कल्चर इन्वॉल्व द वे वी बिल्ड आवर नॉलेज सिस्टम्स, आवर इंस्टीट्यूशंस, है ना. तो कल्चर इज अ वाइडर टर्म. philosophy is a part of that. It is another fact that philosophy can influence culture, as you said. इधर ध्यान दीजिए. philosophy obviously it could influence culture, but it is a part of culture, as culture is a much wider, much pervading idea. संस्कृति का मतलब जैसा इन्होंने कहा कि एक लंबे समय से हम जिस तरीके से रह रहे हैं, हमारा रहन सहन है, हमारे जो आचार विचार हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, उन सभी का जो सेट है उसको हम कल्चर कहते हैं. हाँ ठीक है. हाँ ठीक है. ठीक है. तो क्या कल्चर में केवल आइडियाज ही होते हैं या कल्चर में और भी चीजें होती हैं? कल्चर में खाना भी तो होता है, पहनावा भी तो होता है ना. तो कल्चर में क्या केवल फिलॉसफी ही होती है या कल्चर में और भी चीजें होती हैं? बहुत सारी चीजें होती है ना. तो कल्चर में विचार भी होते हैं. और दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है? वो सेट ऑफ आइडियाज है, सिस्टमैटिक सेट ऑफ आइडियाज. तो अब कल्चर में फिलॉसफी है या फिलॉसफी में कल्चर है? कल्चर में फिलॉसफी. आपको आ रही है बात समझ में? इधर सामने आपको आ रही है बात समझ में? आपको? यस आई एम आस्किंग यू. नहीं आपको हियर. हाँ आ रही है बात समझ में? अच्छा, जैसे आपने कहा कि भाई वो आइडियाज तो फिलॉसफी से जर्मिनेट हो रहे हैं, पर आइडियाज के अलावा तो कल्चर में कई सारी चीजें हैं ना. ऑब्वियसली फिलॉसफी कैन इन्फ्लुएंस आइडियाज विच कैन इन्फ्लुएंस कल्चर. गुड. बट कल्चर इट इज अ मच वाइडर टर्म विच अदर देन आइडियाज इन्वॉल्व्स customs, food, language, festivals, you know, the way we express ourselves, interact among ourselves. So culture is a wider term and philosophy is a subset of it. Is it clear? Likewise, when you talk about religion and philosophy, then what is the condition? You know, इसमें क्या condition है? Which one is correct? A, B or C? Is philosophy a part of religion? Is religion a part of philosophy, or both are outside each other, mutually exclusive? Just now we discussed the interrelationship between philosophy and religion. तो क्या स्थिति है दोनों की? A, B, C? C. अच्छा, you are saying they are mutually exclusive. तो अभी हमने देखा इंटररिलेशनशिप है ना, दोनों कन्वर्ज करते हैं. और बी होगा. अच्छा, सो फिलॉसफी इट इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन. एट टाइम्स यू हैव थिंग्स, यू नो, फिलॉसफी डिस्कसेस व्हिच इज बियॉन्ड रिलीजन एज वेल. फिलॉसफी इज डिस्कसिंग लॉजिक, फिलॉसफी इज डिस्कसिंग ब्यूटी. सो इज दैट पार्ट ऑफ रिलीजन? एस्थेटिक्स, इज इट अ पार्ट ऑफ रिलीजन? इज एस्थेटिक्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन? स्टडी ऑफ ब्यूटी, इज इट पार्ट ऑफ रिलीजन? स्टडी ऑफ लॉजिक, इज इट पार्ट ऑफ रिलीजन? नो. सो द करेक्ट पोजिशन इज, यू नो, philosophy and religion. So they are separate, but multiple aspects, on various aspects they can overlap as well. So the correct position here between philosophy and religion is this: religion, it is not a sub part of philosophy. Religion is separate, philosophy is separate. Is it clear? Philosophy, it is not a subset of religion. It takes into account multiple things which are beyond religion, जो religion के भी beyond है. Logic का कोई space नहीं है religion में, and there is a separate branch of study
ऑफ लॉजिक अंडर फिलॉसफी. इज इट क्लियर? अच्छा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है क्योंकि दोनों के इंटर रिलेशनशिप है, हमने देखा दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं. सो दिस इज द फाइनल पोजीशन. बट व्हेन यू कम टू फिलॉसफी एंड कल्चर, सो फिलॉसफी इज अ कंपोनेंट ऑफ कल्चर वेयर वी आर फिलोसोफाइजिंग इन अ पर्टिकुलर कल्चरल कंटेक्स्ट. हम फिलॉसफी कहां कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर कल्चरल कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, किसी एक कल्चर में कर रहे हैं. इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन. वो कल्चर कैसे बना? हाँ हाँ हाँ, उस बिल्कुल वो प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है. तो प्रभावित करने का ये मतलब नहीं है कि वो उससे बाहर है, वो उसी कल्चर का हिस्सा है ना. जैसे अगर हम कहें कि जो भारतीय दर्शन है ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, या भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन का हिस्सा है. भारतीय दर्शन जो भारत में जो भी अलग अलग दार्शनिक विचारधारा हुई, क्या वो हमारी कल्चर का हिस्सा है, या जो हमारी संस्कृति है वो हमारे दर्शन का हिस्सा है? कल्चर कल्चर का हिस्सा है दर्शन. अच्छा, अभी भी किनको डाउट है कि संस्कृति दर्शन का हिस्सा है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड जिसको ये लगता है. अच्छा, 2 लोग और बताइए. प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज बी वेरी फ्री इन आस्किंग क्वेश्चंस. फाइन. सो व्हाई यू आर सेइंग सो, और व्हाई डू यू आर थिंकिंग सो? सारा चीज फिलोसफी पे डिपेंड है. जैसे पहनावा हो, वो कोई सोच होगा, जैसे गर्म जगह है, हाँ कोई सोच से वो हाँ पतले कपड़े पहने, ठंडी जगह है तो हम्म ठीक है. कई चीजें, हाँ खाने पीने का भी चीज होगा, सारा चीज अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो भी सोच पे. अच्छा, तो कहाँ मान लीजिए धान उगेगा, कहाँ गेहूं उगेगा, ये फिलॉसफी डिटरमाइन करेगी या ज्योग्राफी डिटरमाइन करेगी? ये तो ज्योग्राफी डिटरमाइन करेगी. हम कहाँ कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या ये फिलॉसफी तय करेगा? हाँ, प्रभावित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है. पर्टिकुलर रिलीजन में महिलाओं के लिए क्या कपड़े हों, पुरुषों के लिए क्या कपड़े हों, ये बताए जा सकते हैं. मॉन्क्स के लिए क्या कपड़े हों, नन के लिए क्या हो, ये बताए जा सकते हैं. पर किस चीज के कपड़े हों, क्या ये भी फिलॉसफी डिटरमाइन करेगी? तो दैट इज डिटरमाइंड बाय ज्योग्राफी. लाइकवाइज मेनी थिंग्स आर देयर. लैंग्वेज, दैट इज डिटरमाइंड बाय सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स. भाषा क्या होगी, सोशियोलॉजिकल फैक्टर से डिटरमाइन होता है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, तो अब जिस चीज की वहां पर आपको जो नेचुरल रिसोर्सेस होंगे उसके ऊपर बेस्ड इकोनॉमी होगी. मान लीजिए अगर कहीं पर आपको इंडस्ट्रियल इनपुट्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा है तो वहां इंडस्ट्री ज्यादा होंगी. कहीं अगर प्राइमरी इनपुट ज्यादा है तो वहां आपको एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होगा, डोमिनेंट होगा. बात आ रही है समझ में? ये सब फिलॉसफी से आ रहे हैं या फिलॉसफी प्रभावित करती है इनको, है ना? इकोनॉमी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलॉसफी, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम फिलॉसफी. ज्योग्राफी डज दैट ओरिजिनेट फ्रॉम फिलॉसफी? नदियां, क्या वो किसी ने दर्शन दिया कहीं नदी बह गई? हाँ क्या किसी ने कोई अपना विचार किया, कहीं से कोई पहाड़ खड़ा हो गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया किसी के दर्शन से, आज वो फिलोसफर अच्छे मूड में नहीं है, कहीं भूकंप ला देगा? क्या ऐसा होता है? नहीं होता. सो यस, बट इट इन्फ्लुएंसेस, है ना? आप बताइए, एनीथिंग वांट टू से? हाँ, okay, so is it clear that philosophy, it influences various component of culture, but it is not outside culture, it is well within the culture. क्योंकि culture में ही set of ideas होंगे. वो ideas कहाँ होंगे? किसी संस्कृति का ही हिस्सा होंगे ना. मान लीजिए कि कहीं पर एक ईश्वर को माना जाता हो तो ये एक विचार है, उस संस्कृति का हिस्सा है कि उसमें the idea of having a single god is more dominant. बात आ रही है समझ में? अब उससे उनकी पूजा पद्धति, खान पान, उसको कुछ प्रभाव हो सकता है, बट दैट इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द लैंग्वेज और द कल्चर और द क्यूजीन और द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विच आर पार्ट ऑफ दैट कल्चर. इज इट क्लियर? हाँ हाँ गौतम बुद्धा, हाँ. वो बाद में आए, प्लेटो बाद बने, बट सर वो पहले तो मतलब कपड़े तो पहन रहे थे ना. मतलब पहले कोई ना कोई कल्चर तो कोई ना कोई था. लोगों ने अपनी रहन सहन तो पहले ही विकसित कर ली थी. अब जैसे इनका पॉइंट है, अच्छी बात इन्होंने कही कि कल्चर, कोई ना कोई कल्चर तो रहा होगा जब आदमी ने सोचना शुरू किया इन विषयों पर, है ना? उसके रहन सहन की कोई तो तौर तरीके रहे होंगे. और अभी भी द प्रिवेलिंग आइडियाज इन दी सोसाइटी, आर दे आउटसाइड कल्चर और दे पार्ट ऑफ कल्चर? सिंपल क्वेश्चन इज देयर. फॉरगेट फिलोसफी. आर आइडियाज आउटसाइड कल्चर और आइडियाज आर अ पार्ट ऑफ कल्चर? आपको क्या लगता है? आइडियाज दे आर आउटसाइड कल्चर? हाँ, पार्ट ऑफ. आपको आइडियाज आर दे आउटसाइड कल्चर? इज देयर इज सम आइडिया विच इज आउटसाइड ऑफ कल्चर? कि संस्कृति अलग चीज है, वो विचार अलग चीज है? क्या है?
they're part of culture. Okay, so now we can understand that ideas, they are part of culture. When you deal with ideas, they are well the part of culture, but such churning of ideas, such thinking, that can bring change to the cultural aspect. So we will continue in the next class. Okay, and how shall I deliver you the notes? Shall I dictate it or shall I provide soft copy and put more focus on discussion in the class? Dictate. How many of you think that I shall dictate? Please raise your hand. Okay, so I think almost half of you think so, and other think that I shall. So what I will do, that meanwhile the class is there, after discussion, after discussing a topic, I will dictate. Whatever in that day's discussion is left, I will provide in the form of soft copy, for the sake of that the dictation is also done and we also cover the entire syllabus in time. Is it clear? चलेगा? चलिए, तो समझ में आया? Now you are introduced to the subject. What is philosophy? Does it sound interesting? हाँ, फाइन. तो रिवीजन करना है. आज तो चूंकि पहली क्लास है, आपने कुछ क्लास नोट्स लिए होंगे. आई विल सेंड यू द नोट्स फॉर टुडेज डिस्कशन. फ्रॉम टुमारो वी विल कंप्लीट वन टॉपिक, वी विल डिक्टेट इट, I will dictate it, and whatever is left for dictation in the day's discussion, I will provide in the form of soft copy. On a daily basis, you revise that, ask questions. You know, the last thing I would expect is that you sit silently, है ना? Ask questions. Any sort of doubt, ask it 10 times. If you are not able to understand, many of you are new to the subject. I accept that the subject is abstract in nature. अभी तो बात शुरू हुई है, जब आप आगे जाएंगे तो आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आएंगे. और ब्रैडली तक जाते जाते यू नो यू विल थिंक दैट ओ मींस दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये तो मुझे पहले क्लास में इन्होंने बताया नहीं, ये तो कुछ अलग चीज है. तो बी वेरी अटेंटिव. ओके, थैंक यू. एनी डाउट? ओके, थैंक यू.